नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी, क्या है कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो स्थिति चल रही है बड़ी असमंजस की स्थिति है हर जगह पर, अगर आप देखें तो। यस यस, टोटली से। मराठा आरक्षण, अब जो कुनबी समाज है वो कह रहा है कि यार अब मराठाओं को अगर आप कुनबी डिक्लेयर कर देंगे, जितने भी मराठा हैं सबको कुनबी डिक्लेयर कर देंगे, जो कुनबी समाज को अभी रिजर्वेशन मिला हुआ है वो तो पूरा पूरा कट जाएगा, उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं फिर उसका मतलब जो अभी मिल रहा है। तो आई डिडंट दे थिंक ऑफ ऑल दिस बिफोर और व्हाट? आई मीन एंड बोथ ऑफ देम, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड मिस्टर एकनाथ शिंदे went to Delhi. So they do say that the Prime Minister's office is seized of the matter. They're very positive. I hope so. I hope it happens. A lot of leaders from various communities called the Kunbis, the same as Marathas, and then some of the leaders are showing some official Maharashtra Gazette, government gazette, where Kunbis and Marathas had been given. तो अलग अलग चीज जो फैल रहे हैं वो निजाम के वक्त। यस 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 यस, तो ये सब एक चीज है। एंड सुइसाइड्स आर बीन, दिस इज द मोस्ट डिसहार्टनिंग जो बोलेंगे कि एक आंदोलन चल रहा है एंड पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड एंड कमिटिंग सुइसाइड्स। इनफैक्ट इवन देयर वाज सुइसाइड टुडे। नाउ दीस काइंड ऑफ थिंग्स आर टोटली डिप्रेसिंग। इट शोज, आई थिंक जहांगीर पाटिल जी ने इशू किया स्टेटमेंट कि हमको जिंदा रह के लड़ना है, मर के लड़ना नहीं। जी दुरुस्त बात। They said you all have to stay alive and fight it out. Why should you give your lives for this? Yes. Now this is something that is going to spread because anyway, the more we talk about this topic, we have a problem with other broadcasting. That's right. And the only thing is that all I'm saying is that at the end of the day, people have to understand, where their priorities lie at the end of the day. I mean, you already have a depressed economic situation, you already have a agrarian crisis, the farmers are already suffering. Hey, in fact, come to think of it, Pradeep ji, the only person who showed us a ray of hope and the way forward is our friend Mr. Mahatma Gandhi. Yes, yes. As to how to deal with it. He actually came up with solutions, that this is the way. And at the moment with us, we have another man, an amazing man. His name, of course, is Advocate Godfrey Pimenta, who also is a very positive man who always comes up with solutions. And at the moment he's with us. Godfrey sahab, namaskar. Namaskar. How are you, Godfrey sahab? How are you? Great too. All well, all well. Sir, are you back from London? Are you still there? Where are you? Sir, I am back from London, but at the moment I am in Jhansi. Wonderful, 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 absolutely wonderful. Are you there for that fair? Yeah. Are you there for that fair? Yeah, we have a St. Jude shrine here, Yes. so we have come for a Navina service. Lovely. I hope you'll pray for us too. We'll certainly, sir, not only for you, but for the country as well. Yes. We need all the blessings that we can get from everywhere, especially from St. Jude. That's wonderful. So, Godfrey Sahab, this Mathar Pakadi business has been going on now for a very long time. In fact, if I remember correctly, it had been declared a heritage precinct. It was actually declared sir, a heritage precinct. And so, how are they actually thinking of developing it now? Are they developing it really? I mean, they're going to destroy all that? Sir, the Mathar Pakadi, as you know, has been declared as a heritage precinct way back some 30-40 years ago. Thereafter, the government came with a supplemental scheme declaring the additional heritage structures. Practically every structure which is there, about 60 to 70 bungalows which are there in Mathar Pakadi, are protected under the heritage regulations. Yes. Now, sir, there are only such a few areas in Mumbai which can boast of rich heritage and culture, and the two such areas which come to mind is Mathar Pakadi and Khotachi Wadi in And Girgaon. Kotachi Wadi, yes.
And Yes, Kotachiwadi, these yes. are the two only areas which have been left intact by the urbanization, ugly urbanization. But sadly, sir, government instead of protecting the heritage structures, giving them some kind of sops in the form of reduction in property tax, is trying to destroy the heritage itself. In a sense, in July 2022 the meeting under the chairmanship of municipal commissioner, a high powered committee recommended to the state government that Mathar Pakadi can be developed as a cluster development. Good Lord. Yeah. Okay. So now cluster development, what happens? Each and every structure which is standing there will be required to be demolished, and ugly skyscrapers will stand in that place. Now, one of the conditions which have been laid under the what is called so-called the recommendation of the high-powered committee, that there has to be environmental impact assessment study to be carried out to find out the load factor and other factors, how is going to impact the city. As it is, the city is getting crowded. More and more, ugly structures are being added. More load on the infrastructure and civic amenity. Why is the government thinking of destroying such a beautiful houses, 400-year-old sir houses? The people of mostly East Indian community have been well settled. There are Maharashtrian, there are Khoja people or Boris as you call. All are well-knit communities settled there for a number of years now. And suddenly the government comes up with this idea of destroying the entire Mathar Pakadi. Now, to that effect, the BMC has hurriedly issued a letter of intent on 3rd of October 23 this year to a builder called Shripati Built Infra Heritage Private Limited. Now, the word heritage is there in that. What kind of heritage this company is going to protect is the $1 million question. Which is The absolutely residents terrible. have Gee, please go on. Please go absolutely on. terrible, sir. And where is this Madar Pakri exactly located? Mazgaon. 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 Okay. Sir, this is a small area where there are virtually once you enter this area, there are Portuguese style tiled houses in the heart of the city. And a beautiful Not church. only that, there are And an absolutely Yes, wonderful, beautiful church. Really wonderful. yes, around the road. Church is there. There is a Saint Isabel High School is there. Yes. There are heritage tours conducted. The foreigners visit this area to see the heritage, lively heritage of this city. And this government is hell bent on destroying the heritage. गॉडफ्री What साहब are you going सॉरी to टू इंटरप्ट यू मुझे अभी तक याद है ये 99-2000 की बात है उस वक्त ये बात हुई थी आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज आई रिमेंबर माई वाइफ वॉज इन द हेरिटेज कमिटी एंड द recommendation was that especially people in Mathar Pakadi and Kotaichiwadi, since we are asking them to preserve the heritage element of their area, they should be given further incentives to see to it that it should be preserved, not just in the form of discounts in the property tax, etc., but perhaps a lump sum should be given every year to these places so that people do not suffer because of the fact that they are not building these towers, etc. Godfrey sir. Sir, absolutely right. The Mumbai Heritage Conservation Committee was justified in recommending because the houses are old, the structures need periodical repairs and renovations, Yes. and therefore you need to give some incentive in the form of reduction either in property tax or some special assistance so that this kind of houses. Now, sir, I have visited several places in the world. For instance, in China, if you go in the heart of Shanghai city, there is a 400-year-old village kept intact besides a skyscraper. Now, the foreigners are allowed to visit that. They can have a homestay there. They can enjoy the day tour there. And that heritage is well preserved.
Same thing is there in the Hong Kong also and elsewhere also. Now, this kind of preservation efforts are taken by various countries world over. India is also not an exception. Only Mumbai Municipal Corporation looks through the development through the developer's eye and not the common man's what you call Aam Mumbaikars eye. That is the greed for development is going to kill the city rob its heritage of the city. Now, How big is the area? Godfrey sir, how big is this area out there? It's 67 houses, 60 to 70 houses that you talked. How big is the area? Sir, could be about 1 acre and odd, because about 40 to 60 to 70 houses are there, maybe close to anywhere between 1.5 to 2 acres. Okay. To that extent. Okay. Jay, Now, sir, there is another heritage angle, that is from the freedom point of view. The Taka Baptista, who was known as he was the colleague of the Lokmanya Tilak. He fought his case in Bombay High Court. He was the only leader from the East Indian community, and he was the first Indian mayor of the Mumbai Municipal Corporation. His house is located in this Mathar Pakhadi. That also how you are going to destroy. So you have no love for your freedom fighters also. It is a very sad state of affairs. So Godfrey Saab, has the local 60 to 70 houses, they have come together, formed an association? Are they doing something? You are there definitely. As soon as you come from London, you are also directly into agitations, fighting for the rights of the people, the Gautans. Now, have they formed a committee and are they taking up legally all these issues? Sir, I am guiding them. We are also exploring the legal options. But before that, just to highlight an issue, the developer has made an offer ranging from 1.5 to 2 crore in hard cash to the landowners, as well as 40% extra area over existing area. Despite this lucrative offer given by the developer, none of the property owners, the landowners, are willing to consent to cluster development. Now they are opposing that. In fact, they called me the moment they received the offer from the developer in the first week of October. The moment I am back in Mumbai, we are trying to have some kind of a candle march around the Mathar Pakhadi area. We have invited most of the well-known organizations to be associated with this movement to save Mathar Pakhadi, because there are a lot of enthusiastic people who love heritage. Definitely, I have also been dealing with a lot of students from the architect school. JJ School of Architecture. I have a regular. Yes. From Kamla Raija School of Architecture. Last week only they were there with me in Mumbai. So we are trying to get as many as stakeholders possible to join this movement and make this a mass movement to save Mathar Pakhadi. Right. Godfrey Saab, this Mazgaon that you are talking about, 1 acre of land, I can see by the visuals that you have shown, they have maintained even the tiles seem to be 40, 50 years old. They have not even changed that. I mean, you have preserved the sanctity, the virgin sanctity that existed, say, around 40, 60, say from independence, the way we can see in the visuals. Now, the local MLAs, the local corporations, have the BMC issued them some kind of notice, because this is what we fear, and what you also should always see, that BMC issuing notices arbitrarily, asking them to vacate, move the place. We want to use this particular things for. No, but Pradeep ji, this is something symmetry. even more dangerous. Hang on. No, I'm asking if they've issued any notices. Yeah, no, but hang on a minute. How can a builder give them an offer letter without the BMC having taken all these people into confidence to say that, hey, listen, we are going for cluster development and such builder has been appointed for the same, and you will receive an offer letter from them? Isn't the offer letter itself illegal, Godfrey sir? Absolutely, sir. This is absolutely illegal. The BMC, the state government and the developer are in hand in glove with each other, because once the cluster development comes there, the builder will get an FSI of 7 to 8.
he will make a killing in this whole project. So which So means he'll get therefore- towers over here. The towers Yeah. will be over 30 stories. No, sir, more than 60 stories. More than 60 stories. Wow. Yes, Isn't that because lovely? that is the development potential. Really wonderful, sir. Sir, Really that is wonderful. the development potential. And Muscat doesn't have any problem with the height restrictions, No, there to isn't. the airport touch No, and there isn't. No, sir, absolutely no restriction. funnel Absolutely vision no and all those restriction. kind of things which you had. So Sir, 60 sir. storied buildings, 60 Sir, storied let me buildings will highlight one other replace. issue. He wants to highlight. Yeah, please go ahead, sir. Sir, let me highlight one issue. You must be familiar with the what you call Lower Parel area, sir. Yes. The Senapati Bapat Marga, which stretches originates from Mahim right up to what you call Worli, Yes. Worli Naka. This road, on either side of this road, there are skyscrapers which have come. Yes. Today there is so much of traffic since the buildings have not been occupied. Once the building gets occupied, the traffic in the management will go for toss in the entire area. The same kind of experiment is now being replicated in Matar Pakadi. They have not done any what you call feasibility about the traffic management, etc. The roads remain the same. There is no corresponding increase in the infrastructure. Why are you adding skyscrapers? In the But congested Godfrey locality? Sahab, he doesn't mean only about the traffic. Sir, traffic is only one thing. What about the sewage? What about the firefighting potential? Suppose there's a fire in Yes, two yes. places, one of the buildings will burn down. That's it. You are right, sir. Absolutely right. This is a totally developer-centric development. This government does not believe in public consultation. You have rightly put out that why has the BMC not consulted the locals before handing over the letter of intent directly to the developer? That this is a letter Unheard of of. intent. Unheard of. This is never done. This is totally illegal. Come on. Even if you're Sir, talking today about the cluster development, administrator- Ji, even boliye, if you're talking boliye. about cluster development, there has to be some kind of survey being carried out. You just can't arbitrarily go and say, As Godfrey Sahab yes, said, cluster Pradeep ji, development kar lo. Pradeep ji, as And Godfrey, builder, as all out of Godfrey, builder also. as Godfrey Sahab said, there has to be a feasibility report and tenders have to be be invited, bids have to be invited. What is the kind of cluster development that you are looking at? What will you do? Nothing. And they've already chosen a builder. Godfrey Sahab, this is what is going on Yes, here. sir. No, this is, I am a... This owner is of- robbery. And Let's not call it anything else. This is daylight robbery. Let's be very clear. Sir. G. No, it is not a robbery, sir. Robbery, 4 people are required. This is a dacoity. Because more than 4 people are involved in this. The state government, the BMC, the developer. This is a dacoity. You are not bothered about the the welfare of the people, the landowners. They are objecting to this. Their objections are not from now, sir. When a single building was going for redevelopment, people have objected to the Yes. all their pleas have fallen on deaf ears. This government does not care about the public opinion. They are there to make money, sir. That is the money is the sole criteria And we for the must just development. point out for our viewers' benefit. ये हमारे दर्शकों के लिए it is one of the most beautiful areas of Mumbai. मज़गांव में मथार पकाड़ी जो है वहां पर अगर आप जाएं स्पेशली इन एंड अराउंड द टाइम ऑफ क्रिसमस, अभी नवंबर शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप वहां पर जाएंगे, इट सीम्स एज इफ यू हैव एंटर्ड अ फेरी लैंड. It is so beautiful. That entire place is lovely. You get all kinds of food, you get all kinds of different stalls over there. You have those nativity scenes all over the place. It is really and truly beautiful. How can anybody think of destroying that? Godfrey Sahab, that means this is the government of contractors. मतलब यही हो गया ना? Absolutely, sir. You are bang there, because this is all well coordinated effort between the troika of the state government, the BMC and the developer to destroy the heritage of this city. Why are you making heritage regulations if you have no will to scrap all the laws That's right. Finish it. and run a banana republic? Yes. I think so.
Absolutely. No, I agree with you. Godfrey ji, ये cluster development, even if you declare it a cluster development, you need the consent of all the occupants out there. Now you say the occupants are like from the late Kaka Baptista, who was himself a very renowned figure where not only the Catholic community but Mumbaikars know him about it. Now, how do you think that the consent of the people are going to be obtained? Because I think, like every Gautan, you might have a problem within the family. A lot of people, the branches down and kuch ka liya, kisi ka nahi liya. You think that kind of all this mala fide things are going to happen out there? No, sir, there are 100% opposition because none of the owners are willing to consent. They love their houses, they love their heritage, they love their culture. So none of the owners are going to give their consent to the developer. Now the only issue is here, sir, there is a technical hitch in a sense. Some of the plots where the houses are located are given on lease by the collector of Mumbai. So technically, It is collector's the land. developer may take a consent from the landowner who is the collector. Yes, But there is a yes, catch yes. because this is a leasehold land. Yes. The collector has no authority to give the consent for redevelopment. He doesn't hold. But they will use every trick under their belt to see that the developer is somehow favored. But we are going to oppose this tooth and nail. Not only this, sir. Why have a cluster development? We have been demanding separate DCPR, Development Control Promotion Regulation, for Gautams and Koliwadas. Since last 2 or 3 years, nothing has moved from that direction. For the entire 189 Gautams and 40 odd Koliwadas, they only think of specific development where they are going to benefit in terms of monetary benefit. Why is the government acting in a partisan manner? Why can't you have a uniform? There is only one reason, Godfrey sir. Actually, two reasons. That is well known, sir. Actually, two reasons. One, this is prime land. You know that it's Mazgaon. It is Yes. prime land. It costs God knows. I don't even want to know the figures. Per square foot कितना है? 1.5 लाख रुपए है कि 1 लाख रुपए मुझे मालूम नहीं कितना है. नंबर एक. Number 2, this is Christian land. What's going Correct. on here? Why are Yes. Christians being targeted? That's what I want to know from you. Let's address the elephant in the room. The elephant in the room is whether it's Gorai, whether it is this place, whether it is Manori. Why are Christian institutions, Christian villages, East Indian homes, Roman Catholic homes being targeted? Godfrey sir, I would like you to talk frankly, please. No, sir. Sir, you are absolutely right there. Because the community is seen as a soft target and they are experimenting. Today they have done with Matar Pakadi. Tomorrow they come with other 189 Gautams and Koliwadas. You are Yes, trying to yes. destroy the sons of the soil from you are trying to throw the sons of the soil from the city. And we are making a impatient plea to the the parties who want to protect the sons of the soil. We'll be writing to Uddhav Thackeray, the Raj Thackeray, the Congress party, the NCP, all the parties, that if you care for the sons of the soil, the East Indian community is very much Marathi speaking Manus. He should be protected. What have you done for protection of the East Indians? None of the Gautans are protected. Gautans were sought to be declared as slums, but we have fought and ensured that all have been removed from the slum tag. But the danger is still what you call hovering over our heads Godfrey in the ji, form of this kind of cluster development. can you tell us a brief about the village? You said some houses are 400 years old. That's, my goodness, that's huge. 400 years old. 400 years old. Actually, Pradeep ji, there's a mistake there. 300 years This old. is not 200 year old. Actually, it is 400 years old. 400 years. This entire area is actually 400 years old. So, and the Sir, church sir, itself is quite old. Can you just briefly describe, because 400 years old is fascinating. I mean, look at what was there, Basgaon, that was a buzzing town at that particular time, at that era. Sir, there is a little bit history to this. I will just narrate in brief whatever I know little about the area. The fort area, which was the what is called the prime
center of the governance, there was a lot of population within the fort area. जी It could not accommodate the growing population of Bombay at that point of time. So as a result, Mazgaon, which was a coastal belt, which was what you call, there was a harbor there, there was a what you call jetty, etc., and all that. This was seen as another land which could be developed. So a lot of people started residing, constructing their houses there. So all these houses are of maybe about 16th century. Wow. There is a beautiful structure called Lansdowne. The bungalow is, sir, seen to be believed nowhere, not a single that kind of structure you will find anywhere in Mumbai. It is one of the most beautiful. Now this kind of this thing have these chaps who are sitting in Mantralaya and Mumbai headquarters seen the beauty of this village? they don't see any beauty anywhere. They should be taken for a house visit, site visit. Arey, Godfrey Saab, you are asking them to see the beauty of this place. They cannot even preserve their own building, their heritage building called the BMC building. They can't even preserve that. Whom are you talking about? Godfrey Saab. No, sir. It is a very pathetic situation today. The governance in the city is sliding day by day. We have the bureaucrats and the politicians from whom the heritage, the culture does not matter. They are only seeing how to make money, Yes. and that too in the quickest way. How could on the earth the BMC issue a letter of intent to Shripad Build Infra Heritage Private Limited is the $1 million question which the BMC administrator Mr. I.S. Chail has to answer. Without which is very consulting the strange. locals, I how have can never you heard of such a decide thing. My future. Who are you to decide my future? But As to what kind of Godfrey development I want? But Godfrey Saab, you are advocate Godfrey Pimenta. You know the law. How can the BMC commissioner allow such an illegal act to take place under his watch? I really would love to know. What did they think? That this is not going to be challenged? What? No, sir, we are working towards that. Legality will be tested, but this is just to highlight the issue from your medium, and your channel has always been, espousing the cause of the common man. Thank you for giving us time to Thank you, highlight Godfrey the Saab. issue. Thank you, Godfrey Pimenta, for bringing this to light. I think the whole city of Mumbai, Maharashtra, and the whole of India should be grateful to people like Godfrey Pimenta, who have always been fighting for those people who cannot fight for themselves. Let's be very clear. Godfrey, we are all so proud of you. I don't even know how to express myself. But what is the next step now, as Pradeep ji asked you right at the beginning? Sir, we are going to have a candle march, When? maybe When? first week of November itself to Wonderful. highlight the issue. We will try to get as many as stakeholders, including many associations, for this purpose. It will be a massive, I can guarantee you that it will be a massive candle march in and around recent, to be seen in recent times We'll bring in it South. and we'll try and bring it live to all of our viewers. Ji, Surely, Godfrey sir. Saab. And then Godfrey ji, I wanted to understand one thing. Most of these land, old lands, कोई Salset land है, कोई collector land है, कोई अलग-अलग. So you fear that overnight permissions will be taken from the old owners and the current occupants' NOCs or consent will not be required or something like that? Sir, their consent is required, but I think so there is some provision under MHADA. I need to examine because I am recently back from outstation. So I will examine that, the pros and cons. We will not easily allow this kind of development, lopsided development happen in city, which will destroy the heritage. If It will need destroy be, the we city, will not we'll just destroy the city. heritage. We will approach the Prime Minister's office and see whether the intervention can be done, that this kind of heritage is being destroyed under the nose of the Chief Minister and the Deputy Chief Minister. They are least bothered of Mumbai. Godfrey साहब, ये सिर्फ एक छोटी सी जगह का ये मसला नहीं है. मथार पकाड़ी का ये सिर्फ इसका मसला नहीं है, ये पूरे शहर का मसला है. और यहाँ पर आप टावर बना देंगे 60-60
62 मंजिल की आप यहाँ पे टावर बना देंगे. वी डू नॉट हैव फायर फाइटिंग फैसिलिटीज. We do not have enough water for these places. We do not have enough parking for these vehicles that will be there. And as you said, where are all these vehicles going to go? Where are all these cars going to go? At the end of the day, they'll all have to meet on the road. Where is the space? And the example of Senapati Bapat Marg Yes. is perfect example. That's you right. go there and you know that this whole area is so strangulated. You find choked up there. That's right. I mean, it's terrible, absolutely terrible. But really and truly, we must praise you again. Not only it बोलिए, is बोलिए, sir. regulated, but the pollution also is killing the people there. Yes, Exactly. absolutely, In the high rise. absolutely. तो कहने का मतलब ये हुआ, गॉडफ्री साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. कहने का मतलब अगर आप इसको जरा हिंदी में बोल दें तो अच्छा रहेगा. तो थोड़ा सा मराठी में भी बोल दीजिए, सब लोग समझ पाएंगे. कहने का मतलब ये हुआ, गॉडफ्री साहब, गॉडफ्री पेमेंटा इस वक्त हमारे साथ हैं, एडवोकेट गॉडफ्री पेमेंटा, कि मदर पकाड़ी के खिलाफ जो अभी हो रहा है और उसके पहले न जाने कितनी जगह पर और हुआ. जैसे आपने कहा कि गौठन को स्लम डिक्लेयर करने की भी एक साजिश थी, जिसके खिलाफ आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंदोलन चलाया, सब कुछ किया आपने. मतलब मुंबई शहर के जितने भी धरोहर हैं उन सबको खत्म करने की ये साजिश है. टू डिस्ट्रॉय द कैरेक्टर ऑफ मुंबई and turn it into something really ugly and horrible. That's what is being done. Godfrey साहब, अगर हिंदी और मराठी में कुछ थोड़ा समझाएं प्लीज. हाँ सर हिंदी में कहूँगा जी, बोलिए सर. इनका प्लान है कि बम्बई को शंघाई बनाने का. जितने भी मतलब यहाँ पे जो जगह बची है, जितने भी मतलब जगह थी, वो सब अभी मतलब वहाँ पे मकान बन गए हैं. अभी जो बचे कुचे जो मकान है, जो हेरिटेज है, जैसे कि पूरे मतलब दक्षिण मुंबई आप जाएंगे तो सब पुराने मकान है, 40 सिस्टम है, उनको खत्म करके वहाँ पे सब टावर लाना है सर. आज जो मुंबई के जो एरिया है सर, 437 स्क्वायर किलोमीटर है. इस इतने छोटे क्षमता के अंदर आपने कम से कम 2 करोड़ आबादी बसाई है. अगर ये पुराने मकान आप गिरा के वहाँ पे एक बड़ी मंजिली अगर इमारत बनाना चाहते हैं तो उसका ऊपर असर मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर पाया जाएगा सर. यहाँ पे पीने की पानी की क्षमता अपने को बढ़ानी पड़ेगी. जो मलबा और कचरा निकलता है उसकी व्यवस्था करने के लिए भी हमारे पास अभी जगह बची नहीं है. जो मुलुंड डंपिंग ग्राउंड है या तो जो बाकी के डंपिंग ग्राउंड है उनकी भी क्षमता अभी खत्म हो गई है. तो ये इसका मतलब सरकार ने कोई विचार विनिमय किया नहीं है. जो प्रदूषण सिटी के अंदर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उसके ऊपर कोई मतलब क्लाइमेट एक्शन. सर पेड़ तो काट रहे हैं सर, पता नहीं कितने हजार पेड़ और काटने जा रहे हैं. और सर अभी आर्य मिल कॉलोनी में इन्होंने एक नया प्लान, मास्टर प्लान कि अभी प्लीज गो अहेड सर. Godfrey साहब from Jhansi, I think perhaps the network is gone. But really, Godfrey's been doing absolutely wonderful. उसका भी अपने प्रोग्राम करना पड़ेगा कि आ रहा है इसके अंदर ऐसे मतलब जी सर देयर इज इसके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं है. इनको मतलब पॉलिटिकल विल नहीं है. ये इनको सत्ता में कम से कम दिन में ये रह के अपना जेब कैसा भर सकते हैं, यही इनका एक ध्येय होता है. इनको पब्लिक की कोई पड़ी नहीं है. और मतलब सर चुनाव आने वाले हैं. हाँ गॉडफ्रे साहब चुनाव आने वाले हैं. इलेक्शंस हैव टू बी फाइनेंस्ड. तो कैसे करोगे सर? चुनाव में सिर्फ खाली लॉलीपॉप दिए जाते हैं, उसके ऊपर अमल होता नहीं है. पब्लिक मतलब थोड़ा मतलब पब्लिक ने भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि हम लोग हमारा जो रहन सहन जो है बम्बई में दिन भर दिन बिगड़ते जा रहा है. मतलब इट इज बिकमिंग इम्पॉसिबल to stay in the city. But we are with you in this fight. Godfrey Pemenda साहब, all of us are with you in this fight. सर जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे सर. Absolutely, and that's all that one can expect of anybody. Thank you very much, Godfrey Pemenda ji. All the very best to you. Sir. Namaskar. Fantastic. Thank you, sir. Thank you very much. That was Godfrey Pemenda साहब talking about the Mathar Pakadi
माथा पकड़ी and then a village in Mazgaon. कोटाचीवाड़ी कोटाचीवाड़ी अलग है सर, अलग अलग, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, और गावठन जाएगा, 189 गावठन है सर, Yes. 189 वो भी जाएंगे अब सारे के सारे। कहने का मतलब ये हुआ, बस आप बिल्डर को लाइए, सारे पुराने गांव तोड़िए, उसके ऊपर आप बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचे आप नई सुएज लाइन आपको ले करनी है। अभी भी आपकी सुएज चोक्ड है, आपकी जो हमारी जो वाटर सप्लाई की जो लाइन है वो और सुएज लाइन मिल जाती है। नोबडी बॉदर्स अबाउट दैट इन आरए। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस टेकन बाय द एमवीए वाज टू डिक्लेयर आरए अ फॉरेस्ट एंड शिफ्ट दैट डैम थिंग, that metro shed over to Kanjurmarg. But what has happened over there, you can see for yourself, and in fact there are going to be more trees which are going to be cut in RA, which is absolutely terrible. But let's not get started on that. Once I get started on that, I will not stop. And, no, and 7 it is STPs, terrible. we need to know from the environmentalists what are the 7 STPs का क्या हुआ, having the basic things जो है कि at least हम प्रदूषित चीजों को रोके समंदर के अंदर जाने से, and the amount tons and tons of plastics pushed out in the seas on the. And what about the trees, mangroves Pradeep ji? and- What about the trees? What about the thousands of trees which have already been cut? I mean, Trees are being cut and rest are being destroyed. and the rest are being destroyed. The AQI has gone up of Mumbai. Mumbai will very shortly become as bad as Delhi. Oh God, this is terrible. Right, and at the moment with us, let's come back to a safer subject, which is politics. And at the moment we talk about what's been happening as far as the 5 elections are concerned, the 5 states going in for elections, and what is happening with regard to Mr. Rahul Gandhi. Rahul Gandhi साहब मिले सतपाल मलिक साहब से, सतपाल मलिक साहब ने बहुत रेवलेशंस दिए उनको, और उसके अलावा राजस्थान में रेड भी पड़े इधर उधर, मतलब अब चुनाव आने वाले हैं तो वो रेड राज भी चालू हो गया है। तो हमारे साथ हैं हमारे बड़े बड़े अच्छे मित्र कांग्रेस के भरत सिंह साहब। भरत सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, वंदे मातरम। तो सर वंदे मतलब मातरम, वंदे मातरम। तो जीत का अंदेशा तो आ गया आपको, राजस्थान में तो आप जीत गए, मतलब ईडी का रेड पड़ गया, इसका मतलब कांग्रेस जीत रही है, जबरदस्त। नहीं तो और क्या, मतलब अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप सुधार कर दें, बताएं भरत सिंह जी। नहीं ठीक है, देखिए उनका काम है, ये तो हम पहले से जानते थे और पहले से हम कहते भी आ रहे हैं जी। हाँ, ये तो अभी झांकी है, पूरी लड़ाई बाकी है जी। तो भाजपा का जो काम है वो तो करेगी, डरी हुई है, सहमी हुई भाजपा है। तो भाजपा हर तरह से अपना जो है दांव खेल रही है, किसी तरह से इन राज्यों को चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी को मात दें, मगर वो भूल गए हैं कि कांग्रेस पार्टी को मात देते देते खुद अपने आप को मात देने लगे हैं, क्योंकि देश की जनता नाराज है। कांग्रेस पार्टी नाराज नहीं है, कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए काम करती है और वो काम करती रहेगी। भाजपा को ये समझ में आना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को ये समझ में आना चाहिए कि जो वादे उन्होंने पिछले 10 साल पहले करके आए थे, उन वादों पे वो कितने खरे उतरे, उन वादों को उन्होंने कितना निभाया और कितना पूरा किया। तो देश की जनता आज ये पूछ रही है उनसे कि आपने जो वादे किए थे, आपने उसमें हमें क्या फायदा दिया। क्योंकि देश की जनता ये तो पूछती है ना, ये तो उनका फर्ज भी है ना भाई, टैक्स भी देती है, तो ये पूछने का उनका अधिकार भी है कि जो आप वादे किए थे जी, जो वादे करके आए थे, तो क्या हमें वो मिला क्या। उस कसौटी पे देश की जनता आज भाजपा को तौल रही है और कहीं ना कहीं भाजपा उस वादे से और उस वादों को निभाने में फेल होते हुए दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब उन वादों को फिर से मजबूती के साथ जोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये भाजपा को ये पता होना चाहिए राजीव जी, क्योंकि वोट जो है वो देश की जनता देती है, राज्यों की जनता देती है, तो जब वो बटन दबाने जाती है तो उस समय ईडी उनका हाथ नहीं पकड़ सकती है। और मुझे लगता है यही इससे भाजपा की डर शुरू होती है। तो वो डराने जा रहे हैं सभी नेताओं को, सभी पदाधिकारियों को। हो सकता है कि जिस तरह से आज सीबीआई का रेड पड़ा है, चुनाव मुझे लगता है बहुत ही नजदीक आ गया है। 20-25 दिन, 1 महीने के बाद चुनाव यानी बटन दबाया जाएगा। उसके पहले 2-4 नेताओं को
किसी न किसी रूप से फंसा के उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। तो हमारी तैयारी जेल जाने की भी है। इस तरह से भाजपा अगर सोचती है कि डरा के जेल में डाल के और हम जो है कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पे ला देंगे, तो नहीं, अब बैकफुट पे कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, क्योंकि देश की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। भरत सिंह जी, मोदी साहब 9 साल बेमिसाल अमृतकाल, मजबूत सरकार, और कहते हैं कि वंदे भारत से लेके अमृत भारत से लेके नमो भारत, हमने पूरे तरक्की के राह पर इस देश को पहुंचाया। टोटल डेवलपमेंट की बात करें, स्पेस स्टेशन 2035, मोदी जी बोले भारतीय मून पर, चंद्रमा पर पहुंचेगा 2040, सिल्क रूट एस्टेब्लिश कर रहा हूं, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, बोले कि तरक्की के राह पर हम लेके जा रहे हैं। और पुराना मजबूत सरकार है, आपका मजबूर सरकार था, लूट काल था पीरियड और विनाश काल था। भरत सिंह जी, तरक्की के मोड़ टोटल एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया मोदी साहब का कहना है, मगर अभी भी आप लोग चिल्ला रहे हो, कांग्रेस चिल्ला रहे कि मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, जुमले से आजादी, कहां पर है जुमला सर? नाम्बियार जी, आपकी तो तोप जब धड़कती है तो बहुत तेज धड़कती है, बहुत सारे मैं उनको कोट कर रहा हूं, भाजपा वालों को कोट कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लेते हैं तो उसका जवाब देता हूं। मैं अभी एक एक जवाब देता हूं। देखिए, अमृतकाल की बात की है आपने, तो देश की जनता समझ रही है 10 सालों में 20 काल हो गया है। अमृतकाल की जगह पे उन्हें ये कहना चाहिए कि हमने देश की जनता को 10 सालों में 20 पिलाया है, कोई अमृत नहीं पिलाया है। क्योंकि अमृत का मतलब होता है देश की जनता खुशहाल होनी चाहिए, कि न कि दुखी होनी चाहिए। और देश की जनता आज दुखी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, नौकरी से, इन सारी चीजों से बहुत दुखी है देश की जनता। अब आपने कहा कि मजबूत सरकार और मजबूर सरकार, अगर आपकी मजबूत सरकार होती तो आज जो है आप जो है राजस्थान में ईडी और सीबीआई की रेड न डलवाते। अगर आपकी मजबूत सरकार होती तो शायद मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से लेके बाकी मंत्रियों के जेल में न डलवाते, क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार लताड़ लगा चुकी है और लगा रही है। आप महाराष्ट्र में, हम बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, जिस तरह से एक खिलौने की तरह खेला जाता है, उसी तरह से यहाँ के जो है नार्वेकर जी जिस तरह से खेल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उन्हें लताड़ लगाया। लेकिन मतलब इस बेशर्मी की हद होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर लताड़ लगाती तो बोलते नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा ही नहीं, कहीं किसी पैराग्राफ में नहीं लिखा है, कहीं बताया नहीं गया, मेरा नाम उसमें जो है ऐड नहीं किया गया है। तो एक जो है बेहाई कहा जाता है ना, उसकी हद होती है, तो वो हद हो चुकी है। तो अगर ये लगता है कि मजबूत सरकार होती तो शायद इस तरह से हथकंडे अपनाती नहीं, क्योंकि देश वहां राज्य की सरकार तो उन्हें मजबूती के साथ समर्थन करती ना कहीं मजबूती से समर्थन राज्यों की सरकार, राज्यों की जनता नहीं कर रही है। यही दिखा रहा है, चाहे वो अजित पवार को तोड़ के लाने की बात हो, चाहे वो शिंदे जी को तोड़ के लाने की बात हो। अगर आप मजबूत थे तो आपने तोड़ा क्यों भाई? आपने राजस्थान में बहुत खेल खेलने की कोशिश की, नहीं सक्सेस हो पाए। आपने जो है मध्य प्रदेश में वो चीज किया, आपने कर्नाटक में किया, कहां आपने गोवा में किया। तो इसे क्या कहते हैं? इसे तो मजबूर की सरकार कहती है ना। अब यानों की बात करा ली है, अब सारे यान तो इन्होंने बनाया भाई। 2014 के बाद तो हमारा देश आजाद हुआ है। इसके पहले तो हम सभी तो गुलाम थे ना। हम लोग काम क्या करते हो, अंग्रेज राज कर रहे थे इसके पहले। तो ये तो भाजपा और ये नरेंद्र मोदी जी आए तो हमें शुक्रगुजार उनका मानना चाहिए कि हम सब आजाद हो चुके हैं। कंगना रनावत जी जैसी अभिनेत्रियां बेचारी आजाद हो चुकी है, क्योंकि 2014 के बाद तो वो आजाद हुई है। उसके पहले तो आजादी नहीं थी, गुलाम थी वो। तो ये भाजपा का जो एक भ्रम फैलाने का, एक जाल फैलाने का जो नतीजा है, वो देश की जनता इसे समझ रही है। आप समझिए, आज ये समझिए कि जो सर्वे आ रहा है, अगर इतने मजबूत होते तो ये 5 राज्यों को जीतते हुए दिखाते हैं। ये 5 राज्यों में हार अपनी स्वीकार कर चुके हैं। ये कहते हैं ना थेथरई, हमारे हिंदी भाषा में थेथरई कहते हैं। तो थेथरई पे उतर आए हैं कि नहीं, अभी आप किसी भी भाजपा से पूछोगे तो वो कहेंगे कि आप प्रवक्ताओं से पूछोगे, नहीं साहब देखिए हम तो 5 राज्यों में जीत रहे हैं। तो आप अगर नाम्बियार जी पूछोगे कैसे जीत रहे हैं, बोले आप पूछिए मत कैसे जीत रहे हैं, ये हम तो बाद में बताएंगे, जादू की छड़ी चलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। अरे कब तक नरेंद्र मोदी जी का रोना रोओगे? एक ही नेता तो आपके पास बचा है,
बाकी तो सारे नेता तो अंडरग्राउंड हो गए, कोई नेता तो आपके पास ही है ही नहीं है, ना विजन है, ना सृजन है, ना नेता है। एक नेता अगर न रहे हो तो आप क्या करेंगे बताइए मुझे नामभैया जी। हमारे यहाँ तो गिन लीजिए ना, ये बोलते देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे हम तो ठोक के कहते हैं हमारे पास तो इतने कैंडिडेट हैं, राहुल जी से लेके शरद पवार जी से लेके ममता बनर्जी जी से लेके अखिलेश से लेके सभी के सभी जो है इतने बड़े दावेदारी के साथ मजबूत है। नीतीश कुमार जी है, हमारे खड़गे जी है। अरे भाई हमारे पास तो पीएम मटेरियल तो इतना पड़ा है कि आपके पास तो एक गोला दागोगे ना, वो कहीं मिस हो गया तो खत्म। हम तो गोले पे गोले दागेंगे, सारे गोले जाके निशाने पे लगेंगे। आप क्या करेंगे बताइए। तो भाजपा इस समय घबराई हुई है। और देखिए ना, दुर्भाग्य देखिए इसमें नाम्बियार जी, 5 राज्यों में चुनाव है, 3 राज्यों में इनके 15-15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। वो बेचारे मुख्यमंत्री तो झांक रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि भैया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरा तो नाम ही नहीं कहीं आ रहा है, मुझे डिक्लेयर ही नहीं कर रहा है। तो भाई आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हो? आप हमसे सवाल करते हो देश का प्रधानमंत्री कौन है, कांग्रेस बताए, इंडिया गठबंधन बताए, घमंडिया गठबंधन बताए। हम तो पूछ रहे हैं अभी, हमारा तो बाद में चुनाव आएगा, पहले तो आपका 5 राज्यों में चुनाव है, अग्नि परीक्षा आपको देनी है। आप बताइए आपका मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन भाजपा के लोग इससे कतरा जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो एमपी इलेक्शन की बात करते हैं, हम तो प्रधानमंत्री की बात करते हैं। ना भरत सिंह जी, क्या है ना, बजाज साहब हमको हमेशा बोलते हैं कि भाई सर्वे आपके खिलाफ है, तो बोलते हैं सर्वे को छोड़ो, राहुल गांधी जी ने बोला है। राहुल गांधी जी बोले कि राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ गया, तो राहुल गांधी जी ने अनजाने में बोल दिया था, मिस्टेक में बोल दिया था, तो वही पकड़ के बैठे नहीं, राहुल गांधी जी जो अनजाने में सच बोल दिया। तो भरत सिंह जी तो यही लेके बैठे कि राहुल गांधी जी बोले। प्रदीप जी, ये यहाँ पे मैं एक सुधार करना चाहता हूँ। भरत सिंह जी, शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, राहुल गांधी जी ने अनजाने में नहीं बोला था, जान के बोला था, क्योंकि उनको मालूम था कि यही वाक्य उनका उठा करके बीजेपी इसी वाक्य को फहराएगी। तो राहुल गांधी जी भी अब सीख गए हैं, वो जान जान के कुछ ऐसे शगुफ्ते छोड़ देते हैं कि बीजेपी उसको उठा ले। भरत सिंह जी बताएं। कुछ धूर्तबाजों को समझने में समय लगता है तो वो समय समझ गए राहुल जी की राजनीति में किस तरह से और कब दाव खेलना चाहिए। इसी वजह से आज भाजपा, सब ये कहते थे, सारी मीडिया ये कहती थी, शायद राजीव जी, की भाजपा के ट्रैप में कांग्रेस फंस जाती है। भाजपा के ट्रैप में जिस पिच पे भाजपा खिलाना चाहती है, कांग्रेस उसी पिच पे खेलना चाहती है। तो आज हम जिस पिच पे खिलाना चाह रहे हैं और भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री उसी पिच पे खेल रहे हैं, और राहुल जी इसको भली बात समझ गए हैं। और उसको जो अब देखिए ना कि अब वो लगे हैं कि नहीं, राहुल जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है, राहुल जी तो अपने दिल को समझाने के लिए, अपने दिल को खुशी देने के लिए, और आप लोग जो काउंटर क्वेश्चन ना करें तो वो कहते हैं कि राहुल जी ने तो कह दिया है, अब हमारी जीत तो पक्की हो गई है। राहुल जी ने कह दिया, अब हमारी जीत पक्की हो गई। अगर राहुल जी ने ये कह दिया, आपने मान लिया, तो ठीक है भाई। उसके पहले भी तो राहुल जी ने हमेशा कहा है कि अब हमारी तो 5 राज्यों में या 10 राज्यों में सरकार बनेगी। तो आप उसको क्यों नहीं कहते कि राहुल जी ने कह दिया है तो अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी? तो ठीक है, कम से कम सर आपके लिए तो अच्छा है, कुछ आपके लिए तो बहुत अच्छा है, उन्होंने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। हाँ, वो तो भाई, अब तो भाई मैंने क्या कहा आपको राजीव भाई, 2024 के लोकसभा चुनाव मैंने आपको पिछली बार कहा था कि खत्म होने के बाद में सरकार बदल रही है, केंद्र में सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन की आ रही है। ये सारे नेता जो आपने कहा ना कि ये सारे नेता राहुल जी को नेता मानेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 90% भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, केंद्र से लेके राज्य तक, वो जो है राहुल जी के दफ्तर के सामने 2-4 किलोमीटर तक लाइन लगा के सिर्फ ये खड़े रहेंगे कि हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। भरत सिंह जी, अभी जो जिस प्रकार से बीजेपी के सोशल मीडिया नेशनल इश्यूज लेके आपको अटैक करे, जैसे प्रधानमंत्री जो विजयदशमी की रैली में उनके नाम से सोशल मीडिया चल रहा है कि प्रभु राम के काम अधूरा रह करके कोई विश्राम नहीं है, विश्राम। तो फिर मोहन भागवत जी वही कहते कि 22 जून को जबरदस्त मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण, और फिर लेक्चर होता कि राम मंदिर किस लिए जरूरी है और प्रभु राम कैसे पूरे देश का आदर्श है। और आज जैसे संबित पात्रा का चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि संबित पात्रा कह रहे हैं कि गहलोत साहब ने खालिस्तानियों को सपोर्ट किया, राहुल गांधी जी और कांग्रेस
ने हमेशा हमास को सपोर्ट कर दिया। तो एक प्रकार का नेशनल इश्यूज के लेके आपको अटैक करना, कांग्रेस को अटैक करना, राम हो गए, हमास हो गए और ये खालिस्तान हो गए, तो क्या इसके लिए आपके पास कोई स्ट्रेटेजी अपनाया है कि किस प्रकार से इसको विरोध करना? बिकॉज ये स्टेट के इश्यूज छोड़ के, गरीब कल्याण योजनाओं का आपको छोड़ के इस पर लेके, इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं आपको। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने की जो आप बात कर रहे हैं, हम कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं आने वाले हैं। प्लेटफॉर्म पे तो देश की जनता आ गई है और देश की जनता को ये पता है कि हमें किस ट्रेन में चढ़ना है। तो ये अगर मोदी जी समझ रहे हैं, या संदीप पात्रा तो बहुत महान प्रवक्ता हैं, अब उनके बारे में क्या कहा जाए, अब वो कह रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि राम जी को हम भी मानते हैं, राम जी को आप भी मानते हैं, राम जी को पूरे देश की जनता मानती है। हनुमान जी को भी इन्होंने बहुत माना था, हनुमान जी को भी कांग्रेस बहुत मानती है, कांग्रेस के नेताजी मानते हैं, राहुल जी भी मानते हैं। और इन्होंने हनुमान जी को कर्नाटक में उठा के खूब जो है हनुमान पाठशाला किया इन्होंने। तो हनुमान जी ने कहा कि झूठ का सहारा लेके, कम से कम मेरे नाम का सहारा लेके गलत काम मत करो। और उन्होंने जब इलेक्शन हो चुका, उसके बाद में जब काउंटिंग हुई, तो वहां बम्पर वोट से जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी का गदा जो था वो भाजपा के सर पे पड़ा। और कहा गया है, ये मैं समझता हूं कि इस देश में भगवान भी समझते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा है। फिर ये जो राम नाम का नाम जप रहे हैं, तो मैं ये बता दूं आपका कि राम नाम का नाम जपने से राम जी को भी ये पता है कि अच्छाई और बुराई में कौन सही है और कौन गलत है। वक्त आने पे आपको ये नाम किया जी समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी जी सही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही। भरत सिंह जी, ये मैंने पहली बार देखा है 2014 के बाद, अब पहली बार मैंने देखा है। पता नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें, मुझे मालूम नहीं है, वो तो आप ही बताएंगे। पहली बार देखा है कि जो कॉरपोरेट मीडिया चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल जितने भी हैं, पहली बार उनके भी सर्वेक्षण आपको आगे दिखा रहे हैं। उनके भी जो सर्वे आए हैं इन सारे स्टेट्स में, वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं साथ। तो असलियत में तो आप बहुत ज्यादा आगे होंगे, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि उनको तो बहुत तकलीफ हुई होगी ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस आगे। भरत सिंह जी, देखिए, दो चीजें इसमें, दो बातें हैं जी। एक तो ये है कि मीडिया को कहीं ना कहीं, देखिए आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग पत्रकार हैं, और मीडिया पूरा देश का एक एक खाका समझते हैं और जानते हैं। और आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं से ये समझ में आ जाता है आप लोगों को कि ग्राउंड पे आप काम करते हैं, आपके जो टीम है वो ग्राउंड पे काम करती है, तो आपकी टीम ये समझती है ना कि कहाँ से क्या फीडबैक आ रहा है। तो देश की मीडिया ये समझ रही है कि हमने जितना गुणगान गाना था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जितना उनको हमें बचाना था उन्होंने बचा लिया, लेकिन आगे भी बचने का कोई रास्ता तो चाहिए। आगे भी तो हमें अपना जो है सब कुछ देखना है, संभालना है। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी इस चीज को समझती है। और आखिर कितने दिनों तक आप झूठ बोलेंगे? तो हो सकता है कि श्री राम जी जो है कह रहे हैं कि 22 नवंबर को जो है उद्घाटन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मीडिया वालों को भी लगा होगा कि राम जी तो अब आ ही रहे हैं, राम जी का उद्घाटन हो रहा है, और राम जी ने सद्बुद्धि इन मीडिया वालों को दिया। फिर भी कहीं कहीं दबाव में फिर भी बता रहे हैं कि यहाँ पे एज है कांग्रेस को एज कहते हैं, एज है कांग्रेस को। मैं आपको साफ तौर पे कहता हूँ, एज नहीं, हम अच्छी स्थिति से जीत रहे हैं। 125 सीट कम से कम हमारी राजस्थान में आ रही है, और जिस तरह से कर्नाटक में बम्पर जीत हुई है, उस तरह से हम मध्य प्रदेश को जीत रहे हैं। बम्पर जीत हमारी मध्य प्रदेश में है। हम तेलंगाना में 70 सीट आ रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं कि 70 सीट हम तेलंगाना में आ रहे हैं। आप देख लीजिएगा, 70 सीट के करीब हम 70 सीट तेलंगाना में आएंगे। मिजोरम में भी सरकार कांग्रेस के माध्यम से ही बनेगी, नहीं तो कांग्रेस वहां पे नहीं बन रही है, त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस को समर्थन लेके वहां पे हमारी सरकार, वो एक सरकार हमारे समर्थन से बनेगी। उसके बाद में देखिएगा आप जो है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में तो पहले ही मीडिया चिल्ला के कह रही है कि भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, बघेल जी आ रहे हैं। तो ये भाजपा को कहीं ना कहीं आंख खोलने वाली जो है ना एक विक्ट्री कहीं ना कहीं हमारी होगी। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि देश की जनता को राम जी के नाम पे शहादत, सत्यपाल मलिक जी की बातों को आप समझिए,
वहां पे सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे, उन्हें किस तरह से रोका गया और उन्होंने पूरे देश के सामने पोल खोल के रख दिया है भाजपा का। भाजपा को बचाव करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। एक छोटे से चुनाव में नागालैंड में कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, एक छोटे से चुनाव में जहां पे भाजपा ये ढिढोरा पीटती है, हमने राम राज्य ला दिया जम्मू कश्मीर में, सारे जो है कश्मीरी पंडित जो है एकदम सुकून से रह रहे हैं, सारे वहां पे जो आतंकवादी गतिविधियां बंद हो गई, सब हो गए, सब कुछ है। वहां पे 28 सीटों में से 26 पे भाजपा चुनाव हार गई, डिपॉजिट जब्त हो गया। अगर आपने इतनी खुशहाली ला दी थी और आपको सब प्यार करने लगे थे, देश के प्रधानमंत्री का तो कहते हैं ना कि आंधी चल रही है, तो वो आंधी कहां चली गई? वो क्या जो है वो इजराइल की तरफ चली गई? जी, कारगिल हिल काउंसिल में कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, that was an amazing victory. Actually, that was very surprising and an absolutely amazing victory. And for that, I agree. Congress has been working very very hard on the ground. जो हम लोगों को मालूम पड़ा, लद्दाख में, कारगिल में, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, हर जगह पर आपके वर्कर्स जो हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। But the credit I think must go to the leadership of Rahul Gandhi, of that man that you see on your screen. Yes. जिस तरीके से वो मोटरसाइकिल पर गए, लद्दाख तक गए, कारगिल तक गए, लोगों के साथ बैठे, लोगों को मिले, I mean absolutely amazing. I mean इसको you cannot underestimate it. जब ये हो भी रहा था तब भी हम अपने बीजेपी के दोस्तों को बोल रहे थे कि भाई देखिए आप इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप इनको नजरअंदाज मत कीजिए। आज तक जिस भी बड़े लीडर ने पदयात्रा की है या भारत यात्रा की है, वो आखिर में जाकर के प्रधानमंत्री बना ही बना है। आप जिस मर्जी की बात कर लीजिए, या उन्होंने सबसे पहले इस किस्म की यात्रा करने वाले कौन? महात्मा गांधी, उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। दूसरे कौन? मुझे बाकी 2-3 मुझे याद नहीं आ रहे। दूसरे कौन? चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी ने किया था, चंद्रशेखर ने किया था। जगनमोहन रेड्डी जी का जगनमोहन रेड्डी जी, वो तो खैर स्टेट के बने ना चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने भी पदयात्रा किया। और छोड़िए, जबरदस्त यात्रा। लेट अस नॉट फॉरगेट वन मैन हु इज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड, कांग्रेस में है, बड़े पुराने लीडर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, हमारे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने भी पदयात्रा करी थी मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले पिछली बार, और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आई, सरकार भी आई। और अब राहुल गांधी ने पदयात्रा ही नहीं करी है, उनकी भारत यात्रा अभी तक चल रही है। तो अगले प्रधानमंत्री पद राहुल गांधी होने वाले हैं, कहने का मतलब ये हुआ। आपके मुंह में घी शक्कर, मैं तो यही कहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप जैसे शुभचिंतक जो है हमेशा राहुल जी का स्वागत करते रहते हैं और बहुत मानते हैं। लेकिन ऐसा है कि राहुल जी जो हार्ड वर्क करते हैं, राहुल जी ने जो बहुत कुछ, देखिए मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 सालों में मैं जो देख रहा हूं ना, बहुत बदलाव आया राहुल जी में। राहुल जी पहले के राहुल जी नहीं रहे। अब राहुल जी में एक मैच्योर जो होते हैं ना पॉलिटिशियन, वो दिखता है, लेकिन उसके साथ ये भी दिखता है कि उनके दिल में दर्द है देश की जनता के लिए, देश की युवाओं के लिए। उनमें कुछ कर गुजरने की जज्बात है कि मैं देश के युवाओं के लिए और देश की जनता को मैं क्या करूं कि देश की जनता और युवा खुश रहे। और साथ में नौजवान, आप बॉर्डर पे जो नौजवान हैं उनसे जब मिलते हैं राहुल जी ना, तो आत्मीयता दिखती है कि ये हमारा एक परिवार है, और परिवार से जब कोई मिलता है, ऐसा लगता है बहुत सालों के बाद मिले हैं, तो वो सब दिखाता है कि राहुल जी में जो काम करने की ललक और झलक है ना, वो साफ तौर पे दिखती है। और आगे चल के देश को कोई अगर दिशा दे सकता है, दशा और दिशा बदल सकता है, तो मुझे लगता है कि भरत सिंह जी, आपको बीजेपी वहां पर मात देने की कोशिश करते हैं कांग्रेस को, बोले देखो राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रवाद है, वहां कांग्रेस कम पड़ता है। तो ये इजराइल वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक जिस प्रकार से हम सफर कर रहे थे, ब्लास्ट हो गए, कार ब्लास्ट होता, दिल्ली ब्लास्ट होता था, फिर वो बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर लोग जो देश के दुश्मन थे उनके लिए आंसू बहा रहे थे, और हमारे जो सिपाही मर रहे उनके लिए। तो ये आपको कन्विंस, ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा वाले मुद्दे पर आपको 26/11 का जवाब देना पड़ेगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलते रहते। आपका रिस्पॉन्स क्या था? हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने क्या किया?
2004 से लेके इतने सारे ब्लास्ट हो गए 14 तक, उसके बाद 20, उससे पहले 26/11 हो गया बीच में, तो आपका रिएक्शन उतना ठीक नहीं है। तो भले आप कह रहे कि यस राहुल गांधी जी का जबरदस्त जोड़ो यात्रा, बट बीजेपी का कहना है राष्ट्रवाद, राष्ट्र सुरक्षा, वहां पर थोड़ा ढीला पड़ रहा है। आपको लगता है भरत सिंह जी? कांग्रेस ने इस देश में तीन युद्ध हुए और तीनों युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खिलाई। कांग्रेस पार्टी के सरकार में हुए थे। किसी पाकिस्तान को दो टुकड़े किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री थी। मैं मानता हूं कि जो प्रधानमंत्री होता है देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन अगर भाजपा ये उतारू है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री है, उन्होंने किया, तो मैं ये भी फक्र के साथ कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दो टुकड़े पाकिस्तान का जो किया, बांग्लादेश बनवाया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया, न कि देश के प्रधानमंत्री जो अभी फिलहाल हैं जो है भाजपा के नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नहीं किया। अब आपने कहा कि हमास की बात आपने किया, किसने कहा भाई? कांग्रेस का कौन सा नेता कहा कि हम हमास को जो है मदद कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? हमने कहा कि जो हमारी एक नीति बनी थी, जो हमारी नीति में हमेशा से हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करते थे, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम गलती कर रहे हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हुए थे, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी तो समर्थन फिलिस्तीन को ही किया था ना, जब इजराइल के साथ झड़प हुई थी। ये सारा माजरा जो है, देखिए नाम्बियार जी आप समझिए, ये सारा मामला पेगासस का है। वो जो सॉफ्टवेयर है ना, ये उसका है। अगर भाजपा और देश के प्रधानमंत्री अगर इजराइल को मदद नहीं करेंगे, तो वो जासूसी वाला कांड वाला जो खेल खेलेंगे, वो जो रिकॉर्डिंग करवाएंगे, वो कहाँ से करवाएंगे? तो उनकी मजबूरी है, वो पेगासस के लिए जो है वो पेंगुइन बन गए हैं। वो जो है मदद करना चाह रहे हैं इजराइल को। हमने हमास का, फिर कह रहा हूं कि हमने हमास का कभी समर्थन नहीं किया था और आगे भी नहीं करेंगे। जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी हैं, उनका खात्मा होना जरूरी है। लेकिन हमारी जो नीति रही है, कूटनीति रही है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने गलत किया था क्या? भाजपा पहले इसका जवाब दे, फिर उसके बाद वो कांग्रेस से पूछे सवाल जी। और बाटला हाउस एनकाउंटर में कोई रो रहे थे सीनियर लीडर, बीजेपी जिस प्रकार से हाईलाइट करे, आप देखोगे आज ये पूरे पिछले कुछ दिनों से लगातार चालू है कि आंसू किसके लिए बहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि बाटला हाउस का जो कांड हुआ था, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक हम कुछ बोल सकते हैं क्या? अगर हमारे नौजवान मारे जाते हैं, उस विषय पे हमें जो है तकलीफ होती है कि हमारे देश के नौजवान हैं, हमारे सिपाही हैं। अगर जनता मारी जाती है तो हमारे देश की जनता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो आती है, और सच्चाई जब सामने आ गई तो खुला ना पोल। अरे भाजपा का पोल तो अभी बताइए, बाटला हाउस पे ये रो रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी तो कह रहे हैं कि भाई जो है कहां से आरडीएक्स आया, कितने नौजवान जो है शहीद हुए, मुझे बोला गया था चुप रहने के लिए, वहां चुनाव के बाद ही जो है मुंह खोलना है। तो ये इसका जवाबदार कौन होगा? ये भाजपा से आप पूछिए, कभी बैठाइए उनके प्रवक्ता को, पूछिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये पूछा है। जी, मेरी आप लोगों से एक ऑब्जेक्शन है, छोटी सी ऑब्जेक्शन है मेरी, छोटी सी नहीं एक्चुअली गंभीर है, कि कांग्रेस पार्टी अभी तक जो काम कर रही थी, जबरदस्त काम कर रही थी, और उसके बाद सडनली क्या हुआ कि ये विषय जो है ये बैकग्राउंड में चला गया। सर, मणिपुर में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। दुखद बात यह है कि कांग्रेस ने भी अब वो मुद्दा उस जोर शोर से उठाना कम कर दिया है। इसके पीछे क्या वजह है सर? देखिए नाम्बियार जी, राजू भाई जी, मैं समझता हूं कि आप शायद आप तक न्यूज नहीं पहुंच रही होगी या पता नहीं होगा। आज मैं कहीं बैठता हूं, किसी चैनल पे बैठता हूं, बात होती है, हमारे सारे प्रवक्ता आज भी मणिपुर का जिक्र तो आता है और करते हैं कि आज भी मणिपुर जल रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को जो है इजराइल का तो ध्यान आता है, इजराइल के बारे में सोचते हैं, बेचारे रात को सोते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती है। मगर हमारे देश में दूसरा एक इजराइल जिस तरह से जल रहा है, जिस तरह से जो है एक कहते हैं ना कि लोग वहां मारे जा रहे हैं, सब भाग रहे हैं वहां से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को उसकी सुध नहीं है, मगर इजराइल की सुध है, उसे जो है हमास की सुध है। लेकिन देश में इस तरह से जो हो रहा है उसका सुध कब लेंगे? ये बार बार हम कहते हैं, लेकिन देश की मीडिया की भी कुछ मजबूरी समझिए आप।
देश का चैनल मीडिया भी बेचारा कुछ मजबूर है। और ये तो आप लोग का, मैं बोलते हैं ना कि कलेजा, मैं समझता हूँ कि वो 56 इंच का तो मोदी जी का तो नहीं है, मगर आप लोगों का 56 इंच से ज्यादा है कि कम से कम खुल के इस पे बात रखते हैं और बात सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं। और मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि मुझे जहां तक समझ में आता है कि ये भाजपा के प्रवक्ताओं से जो बैठते होंगे, आप सवाल करते होंगे और उसका जवाब शायद मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता दे नहीं पाते होंगे और देने की कोशिश भी नहीं करते होंगे। उसे घुमा दे के कहते होंगे, राजीव जी आप तो पता नहीं, ये तो कांग्रेस की ही देन है, ये रोना रोएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आज भी मणिपुर की जनता बेचारी परेशान है और वहां पे रोज कम से कम 1-2 हत्याएं हो रही है, किसी का घर जला दिया जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है। तो ये आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम है। विपक्ष का सवाल उठाना, विपक्ष का उंगली उठाना, विपक्ष को वहां पे दिखाना, यही विपक्ष कर सकता है ना। आप ज्यादा बोलेंगे तो हमें अंदर कर देंगे, हम उससे भी नहीं डर रहे हैं, लेकिन हम सवाल तो उठा ही रहे हैं। राहुल जी ने 2 बार 2 मीटिंग में, रैलियों में, प्रियंका जी ने कम से कम 3-4 बार जो है मणिपुर का जिक्र बार बार कर रही है, हर रैली में बार बार आ रहा है जिक्र, महिलाओं के बारे में जिक्र कर रही है, मगर भाजपा तो सुनना ही नहीं चाहती है और देश की मीडिया दिखाना नहीं चाहती है। ये अंतर आ गया है थोड़ा। और बाकी हम ऐसा नहीं है कि नहीं उठा रहे। जबरदस्त। भरत सिंह जी, congratulations again, you are ahead at the moment in all the surveys at least. I hope this translates into actual victories in the polls. I hope that happens. नहीं, भरत सिंह जी और कांग्रेस जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को आज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनविजिबल, कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल, ये जबरदस्त तरीके से, जो बीजेपी पहले पप्पू कह रहे थे, फिर रावण कहने लगा, मगर आपने वो जबरदस्त है कि इनविजिबल, कॉन्फिडेंट एंड अनस्टॉपेबल, दैट्स अ फैंटास्टिक मैसेज आप पूरे देश में दे रहे हो। और जैसे बजाज साहब कह रहे हैं कि जोड़ो यात्रा, और हर यात्रा ट्रकर्स के बीच में, फर्नीचर मार्केट में, फील्ड में, खेत में, लद्दाख में, एक जबरदस्त माहौल बना के रखा है पूरे देश में। और गरीब कल्याण योजनाएं जब बार-बार अनबीटेबल है, कोई सोल्यूशन नहीं है सामने वाले के पास। एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स में तो अनबीटेबल है सर। आगे लोकसभा में क्या होता है उसके बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 5 राज्यों में तो लग रहा है आप लोग आगे। उसके लिए 5 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार हमारी 5 राज्यों में बन रही है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम फिर भी जमीन पे एकदम ध्यान से काम कर रहे हैं, एक एक बारीकी से नजर रखे हुए हैं। तेलंगाना का जो मसला है वो जरा कांटे की टक्कर है। आपकी ज्यादा सीट्स आएंगी, आई एग्री, लेकिन AIMIM जो है वो BRS के साथ है। उनकी जो 6 या 7 सीटें हैं हैदराबाद के आसपास की, वो शायद आप लोग उसका मुकाबला कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं जी। वो रणनीति, इसीलिए वो भी रणनीति हमारी तैयार है। आप देखिएगा, चुनाव हो जाने दीजिए, 70 सीट, 69 से 70, अगर 70 आ गई तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। फिर क्या प्रॉब्लम है? 69-70 सीट हमारी तो वहां पे आ रही है, क्योंकि KCR जी की जो स्थिति है ना, वो फंस चुके हैं, वहां पे फंसे हैं एकदम। क्योंकि अभी जो प्रोजेक्शन है दैट इज बिटवीन 54 and 60 फॉर द कांग्रेस। 54 and 60। मैं आपको एक 20 या 25 दिन की पहले की बात बता रहा हूँ। करीब जो सर्वे हमारी तरफ से हुआ था उसमें 69 सीट हमारी आ रही है। वो तो आप सर, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द सी वोटर सर्वे व्हिच वाज कैरिड आउट बाय आई थिंक बाय इंडिया टुडे। हाँ, वो ठीक है। वो देखिए, फिर मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो, जितने सर्वे करने वाले कौन है आप भी जानते हैं, कैसे कर रहे हैं वो भी जानते हैं आप। हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सर्वे हमने कराया था। उस सर्वे में हम जो है तेलंगाना में 69 सीट आ रहे हमारी आ रही है। If you get more than 65 you're okay, then there is no problem. हाँ, 69 ऐसा करके आ रहा था। हो सकता है कि 1-2 सीट कम हो सकती है, 1-2 सीट बढ़ सकती है, लेकिन हम बड़ी अच्छी स्थिति में हैं। भाजपा तो पूरी तरह से साफ है। मुझे लगता है कि अगर वहां डिपॉजिट बचा ली भाजपा ने, डिपॉजिट, देश के प्रधानमंत्री की इज्जत वहां पे दाव पे इसलिए लगी होगी कि कर्नाटक में लगा चुके हैं देश के प्रधानमंत्री की मेरे नाम पे वोट दे दो। इसके पहले उन्होंने जो है वहां पे दाव लगा चुके थे हिमाचल में। अब मुझे लगता है कि फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री जो है वो दाव लगाने जा रहे हैं जो है हेलो जी तेलंगाना में। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को कम से कम बार इस तरह से दाव नहीं लगाना चाहिए। On that I agree with you. By the way, on that I agree with you totally. The BJP should not use the Prime Minister like this. Very frankly speaking, it doesn't look nice. सर, जैसे कांग्रेस ने एकदम सरल तरीके से हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है, हिंदुत्व को भी अपना दिया है। आप देखो कि छत्तीसगढ़ में सब बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि
गोमूत्र खरीद रहे 4 रुपए पर लीटर, आप गोबर खरीद रहे 2 रुपए पर किलो। यानी बीजेपी का एजेंडा आपने चुराकर अपने एजेंडा में सेट कर लिया और गरीब कल्याण योजना भी कर रहे हैं। तो राजस्थान में भी दूध देता गाय मर गया 40,000 कॉम्पनसेशन। तो हिंदुत्व का बीजेपी का एजेंडा बहुत अच्छे तरीके से आपने एकदम सरल तरीके से अपनाया है, बहुत जबरदस्त बात है। तो आने का चांस ही नहीं दिख रहा। नामबिहार जी, ये कहने वाली बात है, ये बार बार हम पे तोहमत लगता है कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। आप बताइए मुझे कि क्या हिंदुत्व कांग्रेस ने छोड़ा था क्या कभी? क्या कोई नेता मंदिर जाता ही नहीं है क्या? क्या पूजा करता ही नहीं? अब ये हम ढिढोरा तो नहीं पीटते हैं कि लेके हाथ थाली और जो है लेके पीटे हैं हम, क्योंकि थाली और ताली कौन कौन क्या क्या पिटवाता है ये तो आप जानते हैं। हम जो है अपने दिल में भगवान को मानते हैं, जिस तरह से राजीव जी आप और नामबिहार जी आप मानते होंगे, उसी तरह से सब मानते हैं, सारे हिंदू मानते हैं। लेकिन सब हिंदू 140 करोड़ जो हिंदू हैं इस देश में, तो वो थाली और ताली लेके नहीं बजते कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। ये हिंदुत्व का नौटंकी और नाटक दिखाने का काम भाजपा शुरू से करती आई है। And the other thing also is, भरत सिंह जी, दूसरी चीज क्या है, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि even the Muslim voters come back to you, the scheduled caste, scheduled tribe vote and part of the OBC vote is also coming to the Congress. तो अभी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप जितने भी स्टेट जीतेंगे उसके बाद आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे लोकसभा चुनाव तक। उम्मीद यही करते हैं कि मतलब वो मेहनत में कमी नहीं आएगी, यू विल नॉट रिलैक्स टिल सच टाइम एज दी लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जीत के बाद आदमी जरा थोड़ा बहुत आराम करना शुरू कर देता है। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा। भरत सिंह जी, नहीं देखिए राजीव जी, अब वो समय नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा। अब आपको एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव पे फोकस करके काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो और हमारे पास तो समय भी नहीं है, सोने का समय नहीं है जी। राहुल जी के साथ मैं जब महाराष्ट्र में पद यात्रा कर रहा था, तो उसमें 400 किलोमीटर पूरे महाराष्ट्र में जब चला तो मुझे पता चला कि सोना और खाना किसे कहते हैं और मेहनत किसे कहते हैं। जब आप सुबह 2 बजे जब आप सोते हैं और सुबह 6 बजे ही तैयार होकर निकलना पड़ता है, तो आपको पता चलता है कि मेहनत क्या होती है। तो ये चीज मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में एक जो बदलाव आया है, बदलाव ये आया है कि अब जो है हर कार्यकर्ता तो काम करता ही है बेचारा उतर के, नेताओं को भी अब जो है जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा। और तब जाके कांग्रेस पार्टी जो मजबूती अब दिख रही है, अगर ये मजबूती हमेशा के लिए रखना है तो हमें और आप सबको मिलके, नेताओं को मिलके जमीन पे काम करके, जनता का काम करके, हमें उनके दिल में जगह बना के फिर से 70 साल तक हमें राज करना है। तो ये जरूरी, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। भरत सिंह जी, लवली टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम। थैंक यू। You know, the Congress really has got its act together now. They have really got their act together. That's what they really needed. I mean, in terms of the fact that they had kind of got distracted by the very focused and fierce attack of the BJP. So they didn't quite know how to handle it. And now perhaps I don't understand. The BJP propaganda state of Garib Kalyan Yojana is only of the center's, what Mr. Modi has done. The Prime Minister Modi has done. What have they got? How will they combat, units free, ये free? वो तो साफ बोल रहे कि हम नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। then गरीब को क्या मतलब है कि आप देश का नुकसान होगा और सिर्फ गरीब ही देके देश का नुकसान होगा। गरीब का काम है कि देश को बचाए। लेकिन प्रदीप जी, उससे क्या होगा कि मतलब वो फिर सीधी सादी बात है, तो मतलब जो कर्नाटक में हाल हुआ था वही होगा। क्या करेंगे आप? मतलब No, but why is the stand of the BJP? You ask any spokesperson of the BJP, बोले नहीं, we don't believe in these schemes. देश का खजाना लुटाना, देश के खजाना आप गरीबों पे लुटा, पूरे सरकार किसके लिए चल रहा है? That's right. ये पूरे सरकार। If you can write off 9.5 lakh crores worth of bad loans given to industrialists. Yes. Why can't you do this? So no, how are you talking about the people? That the sacrifice should come from the most poorest of poor. It should come from the rich. It should come from the richest of the rich. That's it. So I'm not sure ये what that argument, logic is. I don't know. It doesn't appeal to us. How will it appeal to the poorest man? He is concerned about his food. कहाँ से उसको मिलेगा? बोले कि इस खाने से भी मैं उठा लूँ, आपको त्याग करना है देश के लिए। तो I don't understand this explanation at all.
And they really will have to. They really will have to work out. and they bluntly tell you that no, we don't believe in this kind of रेबड़िया रेबड़िया बांटना. अरे गरीबों के लिए बांट रहे आप. गरीब को अरे भाई आप भी तो दे रहे हैं ना. 83 करोड़ लोगों को आप भी तो खाना दे रहे हैं ना. हर हफ्ते का तो खाना मिल रहा है लोगों को. 83 करोड़ पीपल आर गेटिंग दैट फूड. तो वो रेवड़ी नहीं है क्या? रेवड़ी का क्या मतलब हुआ? ये रेवड़ी थोड़ी हुई. They need to come out with more justifiable explanation. Yes. कि why are they not doing these things in the state? अगर कांग्रेस is doing it, आम आदमी पार्टी is doing it, इतने यूनिट फ्री वुमन पेंशन हम देंगे, सीनियर सिटीजन्स को हम पेंशन देंगे, फ्री एसटी ड्राइव फॉर वुमन. Very difficult to combat. This, what you are saying, Pradeep ji, it is very difficult for any party to combat, which is, and the other thing I agree with Mr. Bharat Singh, by the way. Of course, he said it with a different intention, I am saying it with a different intention. The BJP cannot push the Prime Minister everywhere. Let's be very clear. It's not his job. भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, कोई बहुत बड़ी इलेक्शन हो, बहुत बड़ी चीज हो, वहां पर आप भेजिए. मतलब हर स्टेट इलेक्शन में. Or sir, is it the other way? The Prime Minister doesn't want to push any state level leaders to the forefront. Could be. He says, there's only one person, and it's me. I decide. Yeah, but even in a municipality election, like in Hyderabad, for example, you sent the Prime Minister. Delhi की जो election होती है, government की जो election है, and what is the Delhi government? It is actually a glorified BMC in Delhi. And in fact, the BMC commissioner here has more powers than the Chief Minister of Delhi. सीधी बात है. तो आप वहाँ पर भी आप प्रधानमंत्री जी को झोंक देते हैं, उसमें आप कहते हैं कि आप जाकर के कैंपेन कीजिए. I don't think that is correct. Very frankly speaking, I think Sir, leaders do make institution. Like change in Maharashtra was evident. It was Yes. only Mr. Modi that changed the fortunes of BJP. You can't give the credit But it to can't any be- other person but- apart from Modi but- who has changed BJP's destiny when Maharashtra is concerned. But Pradeep ji, it cannot be done every time. You But can't then do it every the time because the leader- local leadership has to perform. After What the about leader, that? after leader strengthens the institution, I think he himself should, move out from there and allow the local leadership to grow. And what has the local leadership done except put these people in a bit of a trap at the moment? Like for example, the manner in which Maharashtra is facing reservation agitations all over the state. What are they doing? I mean, I don't understand. They should have known that this is going to happen. It's the same old thing that the three engines, actually there has to be one engine, we got three engines. So three engines are probably dragging the entire car They're pulling it in three different directions. So it's always dangerous to have three engines. Unless and until there is some truth in what people were saying earlier, that perhaps there is disagreement among the top three who are ruling Maharashtra right now, and maybe somebody wants the agitations to go on. You know? What is happening in Maharashtra is totally confusing. It is beyond anybody to understand what is really happening here. Sometimes Nana Patole blames Eknath Shinde for promoting Jarange Patil. Then he says that Lati charge was motivated by Devendra Fadnavis ji. Now you got Ajit Pawar ji joined, who doesn't talk about Maratha reservation at all. When you ask him, he says, he talks about a caste-based census on the lines of Bihar. He says, Saudia, I am ready to spend 1,000 crore. Let this happen. So, you got three engines moving in different directions. And with Mr. Fadnavis, when you ask him, he says, no, legally we'll have to study it. If Mr. Shinde wants to incorporate Maratha reservation immediately, he says, it has to stand the scrutiny of law. He's the only person to give a very balanced, a sort of acceptable explanation to all these kinds of demands that are being put, and it finds it difficult. If he wants Maratha reservations, he says it will be incorporated now. Then you have Ajit Pawar who says, I don't know, they didn't ask me before going to Delhi. So Ajit Pawar doesn't know if these two have gone to Delhi. He says they are not so taking what's my really permission. going on? They are not taking my permission, and why they are left Mr. Ajit Pawar back, nobody knows. Ajit Pawar ji को भी ले जाते साथ में, triple engine है तो triple engine है. All three should have gone. We are in tough, and I shouldn't be talking again. We have a problem when we talk about suicides. So we have a major problem right now in Maharashtra. There are certain things which need to be dealt with instantly and immediately, and I think the government's attention is being diverted by agitations with regard to caste-based reservation. अरे caste-based reservation अगर आपको मिल भी जाएगी तो क्या मिलने वाला है यार? What are you going to get? What is the benefit that you're going to get?
It is not as if everybody belonging to that same caste is going to get a scholarship every month. You know, the families are going to be given an X amount of money. What are you fighting for? So I think what has got this agitation has taken such a level, the expectations of a poor man has increased so much. He believes that his son is going to get admission in any engineering or a medical seat without paying money because he will get the reservation. Now these kind of expectations have moved into the minds of the people, and the poorest of people don't realize the actual facts of life. कि exam कभी होगा. So then any delay, visiting, it's going to happen now, and I know I don't have to spend so much money for my son's education. Now all these factors are leading to such a lot of expectations and turmoil. लेकिन प्रदीप जी ये तो बिना रिजर्वेशन के भी दिया जा सकता है. ये जो आप जैसे एजुकेशन है उसमें आप फ्री दे दीजिए, जैसे दिल्ली में दे रहे हैं ना, पंजाब में दे रहे हैं ना, हायर एजुकेशन में भी फ्री कर दीजिए, उसमें क्या है? नहीं कर नहीं रहे ना सर. Why aren't they doing it? That's exactly my point. Rightfully speaking, the right to education is a fundamental right now. That's what it has been made. Now, right to education के तहत आपको मुफ्त की एजुकेशन मिलनी चाहिए, even if it is higher education. क्योंकि आपने include higher education. That's why I agree with you. क्योंकि आपने इतने सालों तक 75-77 सालों तक आपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है महाराष्ट्र के वो आपने निगलेक्ट किए. क्यों निगलेक्ट किए? बिकॉज यू अलाउड ऑल द पॉलिटिशियंस and all these dons of various places to make their own private universities and deemed universities. वहां पर अगर आप सरकारी इंस्टीट्यूशन बनाते, there would have been no problem. Today, exactly, you allowed them to form a syndicate and Yes. they're exploiting the people. It's not a syndicate, Pradeep ji, it's an education mafia. Let's be very clear. Exactly. And these guys are, so जो जितने भी जो गरीब बच्चा निकलता है, he says, I don't see a future for myself. That's right. I don't see a future in engineering or medical और मैं कर ही नहीं सकता और हूँ. तीसरी और चीज़ अगर ज्वाइन करना है, मुझे पैसे देना है, और पैसे देने. And this reservations issue brought a lot of hope among them. That look, you know, this might happen. My son might get admission in engineering without paying a single penny. In fact, most of the cases that are going around in every district is this delay is causing them, you know, kind of resentment or sort of depression. It's causing hypertension, stress. बिल्कुल. लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर the only person who's been very honest has been Raj Thackeray. What he said was अगर आपको रिजर्वेशन मिल भी जाएगी तो क्या होने वाला है? अगर इंजीनियर बन भी गए तो जोमैटो के लिए आप फूड डिलीवरी करोगे. Today there are engineers who are delivering food on Zomato and what is that other thing? Swiggy. Exactly. I mean, where are the jobs? सर आप इंजीनियर आप बन गए, आप रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, उसके बाद क्या आपको कहाँ नौकरी मिलने वाली है? मतलब ये we have borne the entire state to such a turmoil. तो अभी ये कैसे डाउस करेगा? The only way, जैसे शिंदे जी ने खुद जाके देवेंद्र फडणवीस जी के साथ I think probably had a meeting with Amit Shah that something drastically has to be done. And if something comes out of this, the way right at the moment with us from the Shiv Sena, the Eknath Shinde Sena, we've got Mr. Arun Sawant. Arun Sawant साहब, नमस्कार. नमस्कार सर. अरे, how are you, sir? Lovely to see you again. क्या बात है sir? What a smiling, lovely face. I'm fine. Wonderful, wonderful. मुझे लग रहा है आज आप गाड़ी में नहीं हैं. आज गाड़ी में नहीं हूँ. हाँ. आज ऑफिस में ही बैठा हूँ. आप लग रहा है किसी स्पा से आए हैं, बहुत अच्छी तरह मसाज करा करके बहुत अच्छा लग रहा है. मैं कोई किसी स्पा में नहीं जाता हूँ. सब नेचुरल. लवली. अरुण साहब ये बताएं कि ये जो आरक्षण जिसके ऊपर प्रदीप जी और मैं अभी बात कर रहे थे, ये आरक्षण का जो मसला है, मराठा आरक्षण का, ये बड़ा पेचीदा हो गया है सर. मतलब अभी क्या है कि वो डिले की वजह से और बाकी सब चीज़ों की वजह से उधर से कुंभी समाज ने भी एक एजिटेशन शुरू कर दी है, धांगड़ समाज ने एजिटेशन शुरू कर दी है. अब इसका हल कैसे निकलेगा, उसके बारे में जरा समझाएं प्लीज अरुण साहब. देखिए, महाराष्ट्र की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी इसके ऊपर गठित की है. ये कमेटी अपना काम कर रही है. जैसे कि आपको मालूम ही होगा और पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है कि 30 दिन का हमने समय मांगा था, हमें 40 दिन का समय दिया गया. लेकिन ये जो मामला है इतना जटिल मामला है, ये 30 दिनों में कंप्लीट होने वाला काम नहीं है. सरकार ने कोशिश तो बहुत की, करेक्ट, लेकिन अभी भी वक्त लग रहा है. और सरकार, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री
इसमें दिन रात लगे हुए हैं और कुछ ही दिनों में इसका हल जनता के सामने निकला हुआ आप सभी लोग देखेंगे और जो भी हल निकलेगा वो मराठा समाज के हित में ही निकलेगा, ये मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं। साहब कल दो दिन पहले जब दशहरा रैली था, एकनाथ शिंदे जी ने भाषण रोका, अपना भाषण रोक के उन्होंने सबके सामने एक कसम खाए, बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के उन्होंने भाषण रोकते हुए जाके आशीर्वाद दिया, बोले कि मैं चाहता हूं कि मराठा रिजर्वेशन के बारे में कुछ ठोस अभी निर्णय होना चाहिए। तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर चीफ मिनिस्टर को अपना भाषण रोक के छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 मिनट के लिए आगे जाके सर झुका के माथा टेक कर उन्होंने आशीर्वाद लेना। दैट वाज एक मैसेज दे रहा था कि मैं सिंसियरली काम कर रहा हूं, और फिर दूसरे दिन दोनों जो साहब कह रहे हैं कि चले गए दिल्ली, अमित शाह जी वगैरह सबसे मिलने के लिए। सुप्रिया साहिब तुले ने कहा कि अगर एवरीबडी, सबको वो एक शॉकिंग चीज था, तो क्या हाउ सिंसियर इज द चीफ मिनिस्टर सर? सावंत साहब। यस, यू आर सेइंग वेरी ट्रूली। जिस प्रकार से लाखों लोगों के सामने दसरा मेलावा में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ राव शिंदे जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं जो भी कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, सच्चे दिल से कह रहा हूं और खून के आखिरी कतरे तक मैं मराठा समाज के हित के लिए लड़ूंगा और ये जो आरक्षण है वो टिकाऊ आरक्षण देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी, हमारी सरकार दोगलापन नीति नहीं अपनाएगी। और जिस प्रकार से हमने इसके पहले भी, आपको मालूम होगा, हाईकोर्ट में टिकने वाला आरक्षण हमने दिया था, लेकिन कुछ कारणों से कुछ कमियां रह गई थी और वो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में फेल हुआ था। वैसे इस बार नहीं होगा, इसीलिए हमें थोड़ा सा समय और लगेगा। और मुख्यमंत्री जी ने यही बात साफ साफ पद्धति से लाखों लोगों के सामने छाती ठोक कर कही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खाकर कही थी, क्योंकि उनके मन में सच्चाई है और इसलिए उन्होंने यह बात कही थी। लेकिन यहाँ पर सावंत साहब, मैं आपसे एक दूसरी बात पूछता हूँ, अलग बात पूछ रहा हूँ, और ये मैं हर एक से पूछता हूँ, मतलब कोई ऐसी बात नहीं। और मराठा समाज के भी बहुत लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी पूछा है कि भाई आपको अगर रिजर्वेशन मिल जाएगा तो क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन, व्हाट, उसके बाद क्या? सावंत साहब, मिस्टर सावंत। यस, मैंने कहा कि अगर रिजर्वेशन मिल गया, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल गई या कुछ और मिल गया, उसके बाद क्या, वेयर आर द जॉब्स? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है जी कि सिर्फ रिजर्वेशन से काम नहीं चलने वाला है जी। इस देश में और इस राज्य में अलग अलग जगह पर नौकरियां उपलब्ध होनी चाहिए, करवानी पड़ेगी, उद्योग को यहाँ पर आकर्षित करना पड़ेगा। और वही काम पिछले 1 साल में इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एकनाथ राव शिंदे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और अभी आदरणीय अजित पवार जी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ महीने पहले से आप देखेंगे तो अलग अलग उद्योग इस महाराष्ट्र में आकर्षित हो रहे हैं और अलग अलग नौकरियों के अवसर इस महाराष्ट्र में पैदा हो रहे हैं, ताकि रिजर्वेशन का और नौकरियों का मेल जो है वो साध सके। जी, वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि क्या है कि पिछले 70 साल से जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको निग्लेक्ट किया गया, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बनने दिया गया। आज की तारीख में डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, कहने की हद नहीं। सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग में, वो नहीं हुई। तो क्या सरकार उसके बारे में सोच रही है, अरुण सावंत जी? सरकार इस मामले में सजग है। एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आखिरी आदमी तक, आखिरी बच्चों तक जाकर मिलना चाहिए। इसीलिए सरकार अलग अलग प्रकार की योजनाओं के ऊपर काम कर रही है, फ्री में एजुकेशन देने की कोशिश कर रही है, फ्री में बच्चों को अच्छा सकस आहार कैसे मिले उसके लिए कोशिश करें, क्योंकि इस राज्य की और इस देश की युवा पीढ़ी अगर बनी तो ये देश बनेगा। यह इस देश की और इस
राज्य की, मतलब हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसके ऊपर काम कर रही है, और जो नीतियां वो ला रही वो युवाओं के हित में जा रही है, जी। ये आप देख ही रहे होंगे, और उसका नतीजा कुछ ही सालों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सावंत साहब, यहां पर एक बहुत बड़ी अहम चीज है। क्या है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, उसका इंजन जो है, असली इंजन जो है उसका, वो महाराष्ट्र है। वो महाराष्ट्र अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो भारत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। भारत की अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जब महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर आज की तारीख में जितने आंदोलन चल रहे हैं, वो राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था और अस्थिरता का अगर माहौल रहेगा तो वो भारत को इफेक्ट करेगा। बिल्कुल सही। देखिए, इस महाराष्ट्र ने इसके पहले भी कई बार देश को संभाला है, संवारा है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र की जो आर्थिक व्यवस्था है वो काफी मजबूत पिछले कुछ महीनों से बन गई है। आपके नॉलेज के लिए और देश के नॉलेज के लिए मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र जीडीपी में, आर्थिक व्यवस्था में कुछ महीनों पहले, मतलब जब पिछली सरकार थी उस वक्त हम 3 नंबर पे थे, अभी महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था नंबर 1 पर जाने की कगार पर खड़ी है। और इसीलिए इस महाराष्ट्र में उद्योग के नए नए अवसर उद्योगपतियों को मिल रहे हैं, और महाराष्ट्र का जीडीपी भी मजबूत बनते जा रहा है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमेशा कोशिश करती रही है और रहेगी। प्रदीप जी, You know, Sawan Sahab, we want to understand that कभी-कभी ट्रिपल इंजन मूविंग इन राइट डायरेक्शन इज फैंटास्टिक, इट वाज हैपनिंग टिल नाउ। मगर अभी जिस प्रकार से एक चीज अलग, ऐसा लग रहा है कि 3 इंजन इज महाराष्ट्र देश को अलग-अलग हिस्से पे डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अजित पवार जी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी और फडणवीस साहब गए दिल्ली, बोले मुझे पूछ के नहीं गए पत्रकार लोग को, तो इस प्रकार से नोबडी आस्क्ड मी फॉर गोइंग। और फिर अजित पवार जी 1 दिन 2 दिन पहले करना कि जातीय जनगणना करना बहुत जरूरी है, जातीय जनगणना 1000 करोड़ अगर हमको खर्चा करना पड़े वो खर्चा करके जातीय जनगणना करना चाहिए। नाउ अलग अलग देन फडणवीस साहब जी तो अलग स्टेटमेंट दे रहे, हमको जो भी करना है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख के करना पड़ेगा, उसको चैलेंज। तो ये मगर एकनाथ शिंदे डायरेक्ट है कि मैं आपको दूंगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि अलग अलग एक डायरेक्शन जिस प्रकार से जा रहा है, शिंदे साहब की तरफ से टोटल होप्स जा रहा है कि अभी होगा, फडणवीस साहब संविधान की बात करते हैं, अजित पवार जी बैलेंस करके बोलते हैं जातीय जनगणना होना चाहिए। हाउ डू यू सी दिस डायरेक्शन सावंत साहब? इज इट गुड, सेंडिंग द राइट मैसेज? देखिए, तीनों जो हमारे एक तो मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री, ये जो तीनों है एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से विचार विनिमय कर कर आगे चल रहे हैं। तीनों में अच्छा तालमेल है। तो विरोधी पार्टियों का कहना है कि 3 इंजन जो है वो बराबर काम नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, और विरोधी पार्टियों का वो काम है वो अच्छी तरह से निभा रहे। लेकिन ये जो सरकार है इस महाराष्ट्र की इस वक्त काम कर रही है, वो सरकार बहुत अच्छे तरीके से नई नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े थे वो प्रोजेक्ट पिछले 1 साल में हमने शुरू किए और कंप्लीशन की ओर बढ़ गए। ये इस सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसीलिए विरोधी पार्टियां कई प्रकार के आरोप कर रही है। ये बात सही है कि जनगणना ओबीसी की, मराठाओं की होनी चाहिए, तो ये मालूम पड़ेगा कि कौन सी जाति को कितना बेनिफिट मिल रहा है और कौन सी जातियां अभी भी आरक्षण से वंचित है। इसके लिए जो मांग हो रही है कोई गलत नहीं है। हर जाति को ये लगता है कि हमारी जाति को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि ये जो आरक्षण है, आरक्षण का फायदा सभी पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, आर्थिक पिछड़े वर्ग को भी मिलना चाहिए। और जो अभी महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो कई हजारों जातियां हैं, उन जातियों में कुछ जातियां जो है उनको बेनिफिट मिलता है और कुछ जातियां बेचारी अभी भी इस बेनिफिट से वंचित है। तो जब जनगणना होगी अलग अलग जातियों की, तो उसमें मालूम पड़ेगा कि कौन सी जाति को कितना परसेंटेज का बेनिफिट आरक्षण से मिला है और कौन सी जातियां अभी भी वंचित है। तो उसमें उस वक्त अगर जनगणना ठीक से हुई तो उस वक्त ऐसा कहा जा रहा है कि 4 प्रकार का वर्गवारी होगी उसमें,
और फिर उन 4 प्रकार की वर्गवारियों में अलग अलग जातियों को बिठाया जाएगा और सभी प्रकार की जातियों को उनकी लोक संख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन ये जो काम है, ये जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल प्रक्रिया है, वो तुरंत होने वाली प्रक्रिया है नहीं, लेकिन काम उसके ऊपर चलना चाहिए। और महाराष्ट्र की अब जो सरकार है, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो इसके ऊपर काम कर रही है और सावंत साहब, रिजल्ट सावंत साहब। महीनों में आपको दिखाई देगा। सावंत साहब, मैं चाहूंगा एक छोटी सी चीज आपसे एक व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है मेरी, व्यक्तिगत, पर्सनल। सर, आज की तारीख में जो मराठा आरक्षण के आंदोलन को लेकर कई लोग अपनी जान ले रहे हैं, कई लोग अपना क्या कुछ कर रहे हैं, मैं चाहूंगा प्लीज आप हमारी चैनल के माध्यम से अभी इसी वक्त मराठी में उनको अपील करें कि उनका सब काम हो रहा है, उनको कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज गो अहेड सर, मराठी में बोलें सर प्लीज। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। जैसा कि आपने कहा, मैं आपके इस चैनल के द्वारा महाराष्ट्र के सभी जनता से अपील करता हूं, मराठा समाज के, ओबीसी समाज के, धनगर समाज के और बाकी सब समाज के लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि ये जो सरकार है, अलग अलग प्रकार के आरक्षणों के ऊपर उनका पढ़ाई चल रहा है, काम चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि किसी भी अलग समाज के आरक्षण को कोई भी टच ना करते हुए हम मराठा लोगों, मराठा जाति को आरक्षण देने की पूरी सच्चे दिल से कोशिश करेंगे। आप कोई भी गलत कदम ना उठाए, इस महाराष्ट्र को शांतिपूर्वक जो उनका विकास का काम अभी सरकार के द्वारा चल रहा है उसमें सहायता करें। हम किसी भी समाज के आरक्षण को टच नहीं करेंगे, ऐसा शब्द हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सरकार ने दिया है। बस आप उनको वक्त दे दो और इंतजार करो कि ये सरकार क्या दे रही है, क्या देने की कोशिश कर रही। हमारी सरकार की बातचीत केंद्र सरकार के साथ भी चल रही है, लेकिन प्रक्रिया जटिल होने के कारण कुछ वक्त तो लगेगा। इसीलिए महाराष्ट्र के जनता को मैं आह्वान करता हूं कि कृपया आप शांत तरीके से अपना जो आंदोलन है वो जारी रखें, क्योंकि वो आपका हक है। सर, मराठी में महाराष्ट्राच्या जनतेला मी आवाहन करतो, मग त्यामध्ये सर्व प्रकारची जनता आली, मराठा समाज आला, ओबीसी समाज आला, धनगर समाज आला आणि इतर समाज आले। सर्व समाजाच्या लोकांनी डोकं शांत ठेवून आपापलं आंदोलन करावं, कारण आंदोलन करणं हा तुमचा हक्क आहे, आपले अधिकार मिळवणं हा तुमचा हक्क आहे आणि तुम्हा सर्वांना तुमचे अधिकार देणं हे या सरकारचं परम कर्तव्य आहे। आणि या सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी याच्यावरती मन लावून काम करत आहेत, सच्चा मनाने काम करत आहेत आणि केंद्र सरकारशी सुद्धा त्यांचा विचार विनिमय सुरू आहे। तेव्हा कोणत्याही समाजाने चुकीचं पाऊल टाकू नये आणि या महाराष्ट्राची जी काही शांतता आहे ती भंग होऊ नये। कोणीही आपल्या जीविताला धोका पत्करेल असं कोणतेही कार्य करू नये आणि कोणाच्याही, खास करून विरोधकांच्या ज्या खोट्या भूलथापा आहेत, आणखी जे मराठा समाजाचं आंदोलन चिघळण्याचा प्रकार काही लोक करत आहेत, ओबीसी समाजाला भडकवण्याचं काम करत आहेत, धनगर समाजाला भडकवण्याचं काम करत आहेत, कृपया अशा लोकांपासून आपण सावध राहावे आणि शांततेच्या मार्गाने आपण आंदोलन चालू ठेवा, अशी मी आपणास या सरकारतर्फे, सरकारचा एक प्रतिनिधी म्हणून, शिवसेनेचा एक प्रवक्ता म्हणून हात जोडून आपणास विनंती करीत आहे। प्रदीप जी। सावंत साहब, ड्यूरिंग द दशहरा रैली उद्धव ठाकरे जी ने बार बार जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चंद्रचूड खुद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से आया है, मगर चंद्रचूड अपने मेहनत से चीफ जस्टिस बना है, मगर उनके जो डिसीजंस हैं वो लोगों को समझना चाहिए कि वो न्यूट्रल है। और आगे जाके उद्धव जी ठाकरे जी बोलते हैं कि आगे जाके इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, तो यही मैं प्रार्थना करता हूं। तो उद्धव, आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे जी क्या कहना चाहते हैं कि उनके तरफ जस्टिस नहीं हो रहा है, कि जो उन्होंने यहाँ पर मूव किया वो स्पीकर रोक के रखा है और शायद सुप्रीम कोर्ट भी वक्त ज्यादा। हाउ डू यू सी उद्धव जी रिएक्शन? सावंत जी, देखिए, सबसे पहले
ये बात मैं कहूंगा कि जुडिशियरी के ऊपर शक व्यक्त करना ये उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि इस राज्य के वो मुख्यमंत्री रह चुके, एक पार्टी के वो प्रमुख नेता है, और ऐसी व्यक्ति उनके फेवर में जब डिसीजन आता है तब वो खुश रहते हैं, तब उनको जुडिशरी सही लगती है। और अगर उनका जब गलत रहेगा कोई बात तो गलत डिसीजन वो आएगा ही ना। जुडिशरी, यहाँ की इस देश की जुडिशरी के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, इस राज्य की जुडिशरी के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। यहाँ की न्याय व्यवस्था पूरी स्थितियों का अभ्यास करके जो सही होता है उसके ऊपर न्याय देती है, और वो न्याय व्यवस्था जब न्याय देती है तो न्याय हमारे खिलाफ में हो या हमारे विरोध में हो या हमारे साथ हो, उसको मानना चाहिए। उसके ऊपर शक व्यक्त करना ये उचित नहीं होता, और उद्धव ठाकरे जी जैसे व्यक्ति ने ऐसी बात भविष्य में कभी नहीं कहनी चाहिए, मैं इस चैनल के मार्फत कहना चाहूंगा। सावंत साहब, आपसे एक और सवाल। आप खुद शिवसेना से हैं, बाला साहब ठाकरे के साथ भी थे, हमने तो पूरी शिवसेना इकट्ठे देखी है। क्या आगे चल करके ये हो सकता है कि सब लोग एक हो जाएं दोबारा? देखिए सर, राजनीति में कब क्या होगा इसका कोई अंदाजा आज आप नहीं लगा सकते हो। राजनीति में कोई किसी का हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता है, और कोई किसी का हमेशा के लिए दुश्मन भी नहीं होता। तो इस वाक्य से आपको जो समझना है आप समझ ले सकते हैं। नो, ये उद्धव आदित्य ठाकरे जी बार आज फिर उन्होंने ट्वीट कर माध्यम से रोड स्कैम, फर्नीचर स्कैम इंक्वायरी झालाच पाहिजे, बीएमसी इंक्वायरी का चालू कर दिया है। मैं अपेक्षा करता हूं फ्री एंड फेयर इस प्रकार से होगा। ये वही घटने बाहेर सरकार आहेत, खोके सरकार आहेत। तो आप ये बार करप्शन चार्ज जो शिंदे साहब पे लगा रहे आदित्य ठाकरे जी, तो आप कैसे इसको, हाउ यू गोइंग टू डिफेंड दैट? सर, आदित्य ठाकरे अभी भी एक बच्चा ही है, उसको अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है। उसे उसके पिताजी के कार्यकाल में मंत्री बनाया गया था, इसका मतलब वो अनुभवी नेता बन गया ऐसे नहीं होते। इसीलिए गलत बयानबाजी हमेशा अलग अलग चैनल के ऊपर वो करते रहते। अभी उन्होंने कहा है कि सारी इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छी बात है, इंक्वायरी अगर होनी चाहिए तो आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूं, कुछ दिनों पहले कैग ने सीएजी की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे तभी 1200 करोड़ का बीएमसी में घोटाला हुआ। अभी इसकी इंक्वायरी आदित्य ठाकरे मांग रहे तो अच्छी बात है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और होकर भी रहेगी। और इस इंक्वायरी में आपके नॉलेज के लिए, पूरे देश के नॉलेज के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संजय राउत जी के करीब दोस्त, आदित्य ठाकरे जी के करीब दोस्त और उद्धव ठाकरे जी के सगे संबंधी, इन सभी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। किसी को खिचड़ी पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी को बैग पहुंचाने का काम दिया, किसी को दवाई पहुंचाने का काम दिया गया, किसी को कोविड के तंबू बांधने का काम दिया गया। हर एक कंपनी में बोगस घोटाले हुए। जो कंपनियां कुछ दिनों पहले स्थापित हुई, मतलब कल कंपनी बन गई और आज उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ऐसी कई कंपनियों के नाम सामने आए। मैं आपको कुछ एक दो नाम पढ़कर दिखाता हूं, जैसे कि लाइफ लाइन हॉस्पिटल, एक पूरी की पूरी फर्जीवाड़ा कंपनी बनाई गई और इस कंपनी को कोई कामकाज का अनुभव नहीं था। इस कंपनी में आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान, इनके ऊपर ईडी ने आरोप किया है। सुजीत पाटकर नाम के एक आदमी जो संजय राउत के करीबी मित्र संजय राउत जी के, उसी प्रकार से अपने सगे संबंधियों को उद्धव ठाकरे जी ने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अभी इसकी अगर इंक्वायरी हुई तो इन लोग कहां जाएंगे, ये आप ही बताइए अभी हमें। बस ये क्या है, जनता की आंखों में धूल फेंकने का और ये चित्र निर्माण करने का कि हम साफ है। लेकिन सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार अगर ये सारे घोटाले बाहर आए तो ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और सावंत साहब, आदित्य ठाकरे, अब उद्धव ठाकरे जी भी शायद दशहरा में ये बोल रहा था कि मैंने बीकेसी में कोविड हॉस्पिटल बनाया था, मगर ये सरकार वो कोविड हॉस्पिटल को डिसमेंटल करके
बुलेट ट्रेन बना रहे हैं वहां पर, तो इसमें किसको फायदा हो रहा है? यहाँ से गुजरात हर चीज को पहुंचाने के लिए ये सब काम हो रहा है, ये देश विरोधी काम कर रहा है, महाराष्ट्र देश विरोधी काम कर रहा है, ये पूरे बिजनेस यहाँ से बाहर निकालने। तो ना हाउ डू यू रिएक्ट टू सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट? कोविड हॉस्पिटल को डिसमेंटल कर दिया है जो बीकेसी में थे, और वहां पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चालू कर दिया है ना। क्या लोग इमोशनली हो जाएंगे अटैच इसमें? देखिए, इस महाराष्ट्र की जनता को सब सच मालूम है। महाराष्ट्र की जनता कोई मूर्ख जनता नहीं है। मैं महाराष्ट्र की जनता का रिस्पेक्ट करता हूं। महाराष्ट्र की जनता को क्या सच और क्या गलत इसका अंदाजा है। इस महाराष्ट्र की सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने पिछले 14 महीनों में जो विकास के कार्य किए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, जो योजनाएं यहाँ पर लागू की, वो उस सभी का अंदाजा है। और इसीलिए कल जो हमारी दशहरा रैली हुई, उस रैली में अगर आप यहाँ तो नहीं थे, लेकिन आपने अलग अलग चैनलों के ऊपर देखा था, मैं खुद वहां पर मौजूद था। लाखों की संख्या में समुद्र वहां पर उमड़ आया था। पूरा का पूरा आजाद मैदान भर गया था और आजाद मैदान के चारों ओर पूरे रोड जाम हो गए थे। ये परिस्थिति उस वक्त होती है जब उस राज्य की जनता उस सरकार के मुख्यमंत्री को, उसके कार्य को सराहती है। उसी वक्त ऐसा माहौल दिखने में आता है। उसमें फिर आदित्य ठाकरे कुछ भी बड़बड़ करे या आदरणीय उद्धव ठाकरे जी कुछ भी बोले, और बड़बोले संजय अपने राउत, वो तो कुछ भी बोलते हैं। उनकी भाषा के ऊपर, उनकी जीवा के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहा है। वो हर नई भाषा का, हर नए शब्द का वापर करते, लेकिन महाराष्ट्र की संस्कृति को ये मंजूर नहीं है। अपशब्द फिर वो किसी भी पार्टी कहे, फिर चाहे वो मेरी पार्टी का नेता हो, चाहे आपको मंजूर नहीं है। तो सावंत साहब, आज वो फिर कंट्रोवर्सी हुआ, मनीषा काइंडे जी ने कुछ फोटोग्राफ जितेंद्र अवार्ड जी के दिखाए थे कि जितेंद्र अवार्ड जी ड्रग पेडलर्स के साथ है। फोटो बहुत जबरदस्त तरीके से, सुप्रिया सुले जी का शायद फोटो थे ड्रग पेडलर्स के साथ। क्या इसका इंक्वायरी होगा? आज जितेंद्र अवार्ड जी ने कुछ और फोटोग्राफ दिया है कि देखो पराग संघवी स्कैम बिल्डर है, ये स्कैम बिल्डर छोटा राजन के साथ में काम किया है, मीन छोटा राजन एसोसिएट है, पराग संघवी और एकनाथ शिंदे जी हमारे चीफ मिनिस्टर उनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये सब कैसे आप कैसे देखते हैं चीज को? क्या इसमें ये सिर्फ बातें हैं या इसमें कुछ तथ्य हैं, या सिर्फ एकनाथ शिंदे जी को डिफेम करने के लिए इस प्रकार से बात कर रहे हैं? देखिए, कुछ फोटो कल मैंने भी देखे थे। आदरणीय एक्स मिनिस्टर, अभी आपने जो नाम लिया वो, और अपनी खासदार सुप्रिया सुले जी, उनके कुछ फोटो हमने कुछ लोगों के साथ देखे थे जिनका नाम पिछले जो ललित पाटिल वगैरह जो प्रकरण था ड्रग्स का, उनके साथ वो लोग दिखाई देते थे और वही लोग इनके साथ थे फोटो खिंचवाने में। लेकिन जब तक आप कोई भी चीज पुरावे के साथ नहीं कहते, तब तक कोई बात कहना गलत होगा। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी आपने कहा उनके साथ भी कुछ फोटो, लेकिन देखिए नेता लोग जो होते हैं उनके साथ कभी कभी कई लोग आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, जिसका पता उनको भी नहीं होता कि मेरे बाजू में फोटो खिंचवाने वाला आदमी कौन है। लेकिन तथ्यों के साथ आरोप करना उचित होगा, और मैं ऐसे आरोप कभी किसी के ऊपर करता नहीं हूं। जब मेरे पास कुछ पेपर हो, पुख्ता सबूत हो, तभी मैं बात करता हूं। वंडरफुल। लेकिन अब सर आप ये बताएं कि अभी आगे क्या? देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी तो गए दिल्ली, अजीत दादा पवार कहते हैं कि भाई मुझे तो बताया ही नहीं। तो सर ये आपको लगता नहीं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में? वेरी फ्रैंकली, मतलब देखिए साहब, देखो एक मिनट मेरी पूरी बात सुन ले सर। मैं कहता हूँ बताया कि नहीं बताया वो अलग बात है, इट्स नॉट अ रेलेवेंट थिंग। लेकिन क्या है कि इस बात का बतंगड़ बन जाता है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो आपको लगता नहीं है कि कोई एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति पैदा ना हो? सावंत साहब, हर बार ऐसे नहीं होता है। हर बार अगर आप ये कहेंगे या विरोधी पार्टियां ये कहेंगी कि तीनों ये मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री एक साथ हाथ में हाथ डाल के घूमने चाहिए, तो ये पॉसिबल है? इस राज्य की सरकार चलानी है हमें, और अच्छी तरह से चलानी है। हम हर बार अगर ये सोचेंगे कि मिलकर ही घूमेंगे सब जगह पे, तो ये विरोधी पार्टियां जो थी अभी है हमारी, जो
पिछले कुछ साल पहले राज्य में थी, सत्ता में थी, वो काम करती होगी शायद, इसीलिए आज जनता ने उनको नकारा। हमारा हर एक मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री सक्षम है अकेले अकेले काम करने में, और जब हमारी कैबिनेट होती है हमारे सारे मंत्री एकजुट होकर कैबिनेट में बैठते हैं, विचार विनिमय करते हैं और निर्णय लेते। तो विरोधी पार्टियों को जो मन में आया वो कहने दो, हम उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारे मुख्यमंत्री ऐसी बातों को मतलब खड़ा भी नहीं करते विरोधी पार्टियों के, उनको जो बोलना है वो बोलते रहने दो, हम काम करके दिखाते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं और करके दिखाते। और यहाँ पर चलते थे प्रदीप जी, एक सेकंड ना, वन वेरी स्मॉल थिंग, नॉट अ स्मॉल थिंग एक्चुअली, इज क्वाइट बिग। वो नांदेड़ के जो हॉस्पिटल में हुआ और संभाजी नगर में जो हुआ, उसकी जो इंक्वायरी बैठी हुई है, तो उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और क्या उस स्थिति को अब बदला जा रहा है? क्योंकि एक बजट तो सैंक्शन किया गया था दवाइयों के लिए, अलग अलग इक्विपमेंट के लिए, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुई है, जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है। उस विषय के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताएं। जरूर जी बताएं। जरूर है जानकारी मेरे पास, और आपको मैं धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट कुछ दिनों पहले आपके साथ डिबेट में मैं था, उस वक्त आपने पूछा था, उसके बाद अभी काफी समय गया, मैं समझा था कि आप शायद उस घटना को भूल गए रहेंगे। नहीं सर, मैं नहीं भूलता, लेकिन मैं भूलता नहीं। आप भूले नहीं, आप भूले नहीं जी। मैं आपको कहता हूं कि सरकार ने उस घटना को ध्यान में रखते काफी निर्णय लिए। आपको एक ताजा एग्जांपल मैं बताता हूं, मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, उस सरकारी अस्पतालों में गवर्नमेंट ने स्पेशल एक बजट सैंक्शन किया है, और उस बजट के द्वारा उन हॉस्पिटलों में दवाइयाँ, साफ सुथरापन, उस पेशेंटों के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, ये सारी योजनाएं कल ही डिक्लेयर हुई यहाँ पे, और उसको पर अमल भी शुरू किया हमारे महानगर पालिका के आयुक्त ने। और वो जो घटना थी उसके ऊपर हमारे जो पहले क्या था कि एक ही जो मिनिस्टर होते हैं उस डिपार्टमेंट का वही सारी खरीदारी करता था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी ने तुरंत निर्णय लिया कि उस एरिया के जहां हर एक जिला का जो जिलाधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, उस कलेक्टर को उन्होंने अधिकार दिए कि आप भी सर्टेन अमाउंट तक वहां पे उस हॉस्पिटल की सुविधाओं के लिए जो पैसा खर्च करना है वो आप तुरंत कर सकते हैं, आपको किसी के परमिशन की या मिनिस्टर के परमिशन तक रुकने की जरूरत नहीं। उस हॉस्पिटल में जो भी असुविधा है उनके लिए पैसा खर्च आप डायरेक्ट कर सकते हो, दवाई आप डायरेक्ट खर्च कर सकते हैं। उस हॉस्पिटल का जो डीन है उसको कुछ अधिकार दिए गए, वो भी खर्च कर सकते हैं, ताकि वो डिपार्टमेंट तक जाएगा, मिनिस्टर तक जाएगा, वो पेपर घूमते रहेंगे। वो सारी जो बातें थी जो पिछले सरकार करती थी, वो सारी बातें इस सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने खत्म कर दी। और अभी जो दिक्कतें उस वक्त थी, वो दिक्कतें उन दिक्कतों में सुधार आते दिखाई दे रहे हैं, और एक अच्छा निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उसके लिए मैं उनकी आपके इस चैनल के मार्फत भी सराहना करता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं। वंडरफुल। प्रदीप जी, आई थिंक टुमारो प्राइम मिनिस्टर इज इन शिरडी, सावंत साहब, और प्राइम मिनिस्टर आज लेट इवनिंग को ट्वीट किया था, बहुत इंटरेस्टिंग था कि महाराष्ट्र डेवलपमेंट, जो बजाज साहब ने बोला कि महाराष्ट्र डेवलपमेंट विल पुश भारत डेवलपमेंट, मोदी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट, जिस प्रकार से स्पेशल एम्फेसिस ऑन ट्रांसपोर्ट इन महाराष्ट्र, प्रोग्रेस के बारे में बात किया, और आखिर में सोशल जस्टिस से कदम किया है। तो मुझे आपसे पूछना था, कुछ सरप्राइज है क्या? शिंदे साहब गए थे दिल्ली में, फडणवीस साहब गए थे दिल्ली में, जारंगे पाटिल जी बोल रहे हैं कि बहुत विश्वास है चीफ मिनिस्टर पे, और मोदी साहब का एक ट्वीट है जिसमें सोशल जस्टिस के बात कर रहे, जिक्र कर रहे लेट इवनिंग। तो क्या इज महाराष्ट्र इन फॉर सरप्राइज? देखिए, सरप्राइज जो होता है वो डिक्लेयर होने से पहले कहना उचित नहीं होगा, और मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, इनके सरप्राइज के ऊपर मैंने बात कर सकता हूं। लेकिन इस महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में, मराठा समाज के हित के बारे में, मराठा आरक्षण के बारे में सरप्राइज जरूर आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। इस महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, इस देश की जनता को भी अलग अलग प्रकार के सरप्राइज मिलेंगे आने वाले कुछ महीनों में। ये भी बात मैं जरूर कहूंगा। आपको तो मालूम ही है, जब से ये केंद्र सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सत्ता आई और इस महाराष्ट्र में
हमारी सरकार आई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और पवार साहब, हमारे अजित पवार जी आए, तब से इस महाराष्ट्र के विकास की गति बढ़ गई है। देश के बारे में अगर कहा जाए तो कई ऐसी योजनाएं हुई जो जो अनहोनी थी, वो सारी बातें होनी में बदल दी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। जैसे 500 सालों से चला आ रहा राम जन्मभूमि का विवाद खत्म हो गया, धारा 370 को खत्म हो गई, G20 जैसा भव्य आयोजन हमारे देश ने उसका चेयरमैन पद स्वीकार कर, अध्यक्षता स्वीकार कर करके दिखाया, पाकिस्तानी आतंकवादियों को भगाया, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया। कई ऐसी घटनाएं जो पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने इस महाराष्ट्र सरकार का हाथ पकड़कर करके दिखाई है, और इसीलिए इस देश की जनता और इस महाराष्ट्र की जनता केंद्र सरकार के साथ है और केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ है। क्या बात है, Wonderful, Fantastic. absolutely wonderful. जबरदस्त। Real pleasure talking to you, sir. Real pleasure talking to you. This is really and truly wonderful. नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, Thank you, sir. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय महाराष्ट्र, वंदे जय मातरम. हिंद। Now that was really nice. That was really nice. Fantastic. And I do remember Maharashtra is actually India's engine. बिल्कुल, Which is I didn't know this about the new budget allocation for Mumbai hospitals. For that we must thank Mr. Fantastic, Samant. yes. But there's only one problem. The recruitment of doctors and support staff. There's nothing. There's no word on that. Now we are spending on infrastructure. We may be spending on medicines. We may be spending on other things related to the hospital. But unless you have competent doctors and nurses and support staff, you can't really function properly as a great medical team. Now, I hope they're doing something about that. That's the only thing I can. So we don't wait for a disaster for things That's to right. improve things. It should come naturally. Yes, but at least the chief minister is looking at it, and the chief minister is taking drastic action. Because till now there have been so many other disasters in Maharashtra, even during the time when Mr. Uddhav Thackeray was the chief minister. But then, of course, you know, he had to face the biggest disaster, which is COVID, which happened during his time. 2 years out of his 2.5 years was spent in, you know, combating COVID. So, and then in any event, the internal politics of all political parties, as they take over, they took over, and if you are not able to hold on to your flock, well, then you end up being Mr. Uddhav Thackeray, and your government falls right under your feet. But I'm very, very happy that Mr. Shinde is taking very, very quick decisions. And as you said, And he's Pradeep ji, keeping his flock together. and Pradeep ji, as you said, I hope, really and truly hope, the Prime Minister announces something tomorrow. कि प्रधानमंत्री जी कल शिरडी आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कल The कोई ना hint कोई of नई social घोषणा justice, करेंगे. including in this tweet, is, you know, it gives a lot of hope that something is going to happen. But then knowing the Prime Minister, nothing may happen. You know, he's not the sort of chap to give anything away. कुछ मतलब वो बड़ा मुश्किल है वर्कआउट करना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट कल आकर के शिरडी से वो करेंगे. In the meantime, please do subscribe to the channel. आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें. And do please subscribe to the channel. आप सब्सक्राइब करें चैनल को. And do send in your responses. आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें चैनल में. We would love to hear from you. And I would love to, Pradeep ji and I would love to read out your responses right over here. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.